to grace the occasion. Over to you, ma'am. नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से जो ये साइंस स्पेशल लेक्चर साइंस सीरीज शुरू हो रही है, और उसके लिए जो आज का विषय है, व्हाट मेक्स यू अ विनर इन साइंस, बी इनोवेटिव। और उसको डिलीवर करने के लिए आज हमारे साथ जो अतिथि वक्ता है, डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, डिप्टी डायरेक्टर सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR CDRI। और उसके साथ साथ आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब को फादर ऑफ साइंस, साइंटून एंड साइंटूनिक। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बच्चों को आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और आपके उद्बोधन को सुनने का मौका मिल रहा है। और आज का ये जो टॉपिक है, व्हाट मेक्स यू विनर इन साइंस, बी इनोवेटिव, इसका चयन करने के लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बधाई देती हूँ कि इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत इस टॉपिक से हो रही है। ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर है, उनसे शुरुआत हो रही है, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। सोने पे सुहागा जिसको कहा जाता है। तो वाकई में जब हम विनर, अब ये साइंस में नहीं, किसी भी फील्ड में हो, हमारे साथ बहुत सारे छात्राएं जुड़ी हुई हैं जो दूसरे भी स्ट्रीम की है, तो टॉपिक जरूर है कि व्हाट मेक्स यू विनर इन साइंस। तो साइंस में किसी भी फील्ड में यदि आप विजेता होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। जो कुछ चला आ रहा है, लीक पिच तो सब चलते हैं, लेकिन यदि आप पहचान बनाना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनोवेटिव होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबकी आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुमूल्य समय है और हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर साहब को सुने, देखें, ये हमारे लिए ज्यादा उचित होगा। तो मैं कुदसिया जी से कहूंगी कि लेक्चर को शुरू करें। Thank you, ma'am, for your encouraging words. We are highly thankful to our distinguished speaker, globally renowned scientist and science communicator, Dr. P.K. Srivastava, ex-Deputy Director and Senior Principal Scientist, Medicinal and Process Chemistry Division, CSIR, Central Drug Research Institute, Lucknow, for accepting our request and being with us today for sharing his knowledge. The objective of this program is to help students and faculty members to meet, listen, and interact with the Saintune man, Dr. P.K. Srivastava, who has pioneered a new branch of science known as Saintunes that deals with effective science communication by using a novel class of science cartoons called Saintunes. Saintunes are the cartoons based on science. This program will provide information about new research subjects and concepts in a simple, understandable, and interesting way. Dr. P.K. Srivastava has also received National Award for Science Writing by Indian Science Writers Association, New Delhi. He is the recipient of the Outstanding Young Person of India Award by Indian Junior Chamber. He is the recipient of Silver Medal for the Best Lecture in the Asian Conference held at National University of Singapore. Dr. P.K. Srivastava has also been selected as brand ambassador for Singapore-based magazine The Young Scientist, which is read by more than 1 lakh children in Japan, Hong Kong, Philippines, Thailand, Singapore, and India. He has given programs on many national and international news channels as well as radio programs. He has co-authored the book titled as Scientific Tale of Genome and DNA. He is the member of International Society of Bionic Engineering China, member of International Association of Media and Communication Research, IANCR Canada. He is member of Public Communication of Science and Technology Network,
PCST USA, and many more. Dr. P.K. Srivastava has delivered more than 1,300 lectures so far in India, Nepal, Bhutan, Thailand, Singapore, Australia, South Africa, Brazil, USA, and Caribbean countries, covering more than 30 different topics. Now I request Dr. P.K. Srivastava to deliver his lecture. Over to you, sir. Sir, please unmute yourself, sir. Your mic is mute. Sorry. So thank you, Kurtia Bano, Dr. Kurtia Bano, for giving the kind introduction. Honorable Principal of Mahila Degree College, Dr. Nisha Gupta, Dr. Pragya, all the respected teachers. And today I dedicate this lecture to the teacher who taught me how to speak. अब बच्चों, आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि मैं किसी बड़े स्कूल का नहीं पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, और किसी बड़े यूनिवर्सिटी आईटीज में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आई डिलीवर लेक्चर टुडे इन ऑल आईटीज ऑफ इंडिया, और मैं पूरे दुनिया में ऑस्ट्रेलिया से लेके एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, आई कीप ऑन ट्रेवलिंग। और आज जो मेरा ये लेक्चर है, थैंक यू डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, इट्स माय 1347th इनवाइटेड लेक्चर, सो यू कैन इमेजिन आई कीप ऑन ट्रेवलिंग, सो थैंक यू सो मच। और मैं ये अपने टीचर को डेडिकेट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने मुझे बोलना सिखाया था, तो पहला लेसन आपको है कि कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरे टीचर की वजह से, जिन्होंने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी कि मैं बोल नहीं पाता था, और आज मैं बोलने की वजह से ही पूरी दुनिया में लेक्चर देता हूँ और अलग अलग भाषाओं में लेक्चर दे सकता हूँ। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक नई दुनिया में, और वो जो दुनिया है वो साइन टून की दुनिया है। अभी प्रज्ञा स्क्रीन मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा है, स्क्रीन शेयरिंग कैन दे अलाउ मी? प्रेजेंट नाउ आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, एक एरो बगल में है ये। प्रेजेंट का आ रहा है, तो उसमें आ रहा है ना योर एंटायर स्क्रीन या विंडोज, तो अभी कनेक्ट नहीं हो रहा। आपने पीपीटी खोली हुई है? हाँ, यस यस, इट इज देयर। तो विंडो लीजिए सर। एक मिनट, हाँ इट इज, हाँ या इट इज ओपन नाउ। जस्ट विंडो पे क्लिक करिए, जो एक्टिव विंडो है उस, मतलब जिसमें आपने पीपीटी खोला है। I think you can see it now. नहीं सर, अभी हाँ अब दिख रहा है, या इट्स वर्किंग। तो ये जो नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भारत सरकार ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपको जब भी बुखार आए और कभी आपको सर दर्द हो, तो क्रोसिन टैबलेट आपने जरूर खाई होगी। जब भी क्रोसिन खाइएगा, थैंक्स, आप सीरिया रह के एक बार जरूर दीजिए। वी आर द वन हु मेड क्रोसिन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 400 के से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर हैं जो पीएचडी करते हैं। तो यू कैन इमेजिन, आई वाज वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट हियर। और मैं आज जो आपके सामने दे रहा हूँ, इट इज अ वेबिनार। वेबिनार क्या होती है? इट्स अ सेमिनार कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट, है ना। तो अभी तक वेबिनार, लॉकडाउन के पहले शायद हम बहुत कम लोग परिचित थे, लेकिन अब एवरीबडी नोज कि आपको रोज 2-4 वेबिनार कोई देता हुआ मिल जाएगा या कोई सुनता हुआ मिल जाएगा। और इसमें फायदा क्या है कि आप मुझे देख सकते हैं। जैसे अभी 3 दिन पहले मैं एक ब्राजील में लेक्चर दे रहा था, तो मैं इंडिया में बैठा था, लखनऊ में अपने घर में, एंड दे वर वाचिंग मी देयर। और सवाल जवाब आप कर सकते हैं, आप चैट के द्वारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, आपके रिएक्शन में देख सकता हूं। तो ये फायदा है। लेकिन मुझे क्या फायदा है? मुझे फायदा क्या है? मैं घर से बोल रहा हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे हूँ दाहिने तरफ, और यहाँ पे अपनी वाइफ से मैं कह रहा हूँ, डार्लिंग बिफोर आई स्टार्ट गिविंग माय टॉक इन महिला डिग्री कॉलेज, कैन आई गेट अ कप ऑफ टी प्लीज। लेकिन गौर से देखिएगा नीचे की ड्रेस क्या है, और आपको जान के ताजुब होगा, अभी एक डीएसटी के सेक्रेटरी ने फोटो अपनी डाली, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार ने, जहां वो ऊपर तो टाई और कोट पहने, नीचे शॉर्ट्स पहने हुए हैं।
तो आपसे रिक्वेस्ट है माइक्रोफोन को म्यूट में रखिएगा, जैसे डॉक्टर प्रज्ञा ने आपसे कहा था, सो दैट यू कैन एंजॉय माय लेक्चर। अब देखिए, साइंस के जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपकी हालत कैसी होती है। यू कैन सी, बड़ा बोरिंग सा, आपको लगता है कहाँ फंस गए आके। लेक्चर शुरू होता है, थोड़ी देर बाद ये हालत हो जाती है ज्यादातर बच्चों की। और लेकिन आजकल क्या है, अब कोई सोता नहीं है। अब क्या होता है, लोग मोबाइल निकालते हैं, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक सब निपटा डालते हैं। तो स्पीकर तो बड़ा खुश है कि यार लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं, बट इनफैक्ट दे आर नॉट लिसनिंग टू योर लेक्चर, बट दे आर इन डिफरेंट वर्ड्स। कारण क्या है, आपका लेक्चर बड़ा बोरिंग है, इट इज वेरी टेक्निकल। तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। यू फॉरगॉट टू मेक दैट इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस। तो मैं आपको एक नई दुनिया में ले चलता हूं, साइंटून्स। और मैं आई एम वेरी हैप्पी, आज भारत इस विज्ञान में विश्व गुरु है, दुनिया का नंबर 1 देश है। बाकी जो देश हैं इस विषय में हमसे सीख रहे हैं। तो ये मेरी वेबसाइट है scientune.com। जब भी आपको मौका लगे आप इसको खोल के देखिएगा, यू कैन एंजॉय। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डॉक्टर मनोज पटेरिया हैं जो इस समय एडवाइजर हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DS, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार के। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि जो साइंटून का कंसेप्ट है, साइंटूनिक्स का, ये भारत की एक गिफ्ट है पूरी दुनिया को, साइंस एजुकेशन और साइंस कम्युनिकेशन के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में राजस्थान का सीन है। अब सवाल है ये एरिया शुरू कैसे हुआ, मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं। आप शायद पहचान रहे होंगे, बड़ा सुंदर सा देश है, इट इज कॉल्ड सिंगापुर। अभी मैं थोड़ी देर पहले फिर गया था यहाँ पर। ये सिंगापुर का आप सीन देख सकते हैं, गार्डन बाय द बे, ये आप बाएं तरफ जो आपको बिल्डिंग दिख रही है। और ये जो है पूरा एक रात का सीन है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स है पूरा। अब इस सिंगापुर में एक बहुत विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। मुझे 1988 26 मई को अपना पहला लेक्चर देना था, जो मेरा विषय था डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज। और मुझे लगा इसमें लोग सो जाएंगे, तो मैं करूं क्या। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूं कि अब मेरी एज ए साइंटिस्ट ड्रग रिसर्च के अलावा जो मेरा दूसरा काम था, वो मेरी हॉबी थी टू मेक कार्टून्स। तो मैंने बहुत सारे कार्टून्स बनाए थे साइंस पे, जो साइंस रिपोर्टर मैगजीन में छपते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कार्टून का इस्तेमाल किया जाए। और जब मैंने उन कार्टून को सेलेक्ट किया लेक्चर के लिए, तो मैंने देखा इसमें साइंस भी है, कार्टून भी है, तो व्हाई नॉट टू गिव ए न्यू नेम। और इस तरह से साइंस और कार्टून का फ्यूजन करके एक नया शब्द आया, साइंटून। अब मैं जब सिंगापुर में खड़ा हुआ तो पहली बार विदेश गया था, जिंदगी का पहला लेक्चर था। और जब आप पहली बार खड़े होते हैं, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी टफ। तो मैं बहुत नर्वस था, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि चेयरमैन ने कहा आपको 10 मिनट है आपको सिर्फ लेक्चर देने के लिए। अब मैं लेक्चर बना के ले गया था 1 घंटे का, व्हाट शुड आई डू नाउ। मैंने घड़ी निकाल के रख ली और लेक्चर शुरू किया। और जब इतना नर्वस था, मैं बहुत तेज बोल रहा था। लेकिन जब लेक्चर खत्म हुआ और उसके बाद मैंने घड़ी देखी तो 1 घंटे हो गए थे। तब चेयरमैन साहब को भी याद आया कि अरे मैं तो सॉरी, आई फॉरगॉट टू गिव द बेल। और इस तरह से अनजाने में 26 मई 1988 को दुनिया में एक नया शब्द आया, साइंटून, जिसने भारत को इस क्षेत्र में विश्व गुरु बना दिया। और इस लेक्चर पे मुझे लाइफ का पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला। यहाँ से कहानी शुरू होती है आपकी साइंटून की यात्रा की। अब साइंटून, जैसे डॉक्टर कुस्सिया बानो आपको बता रही थी, कि ऐसे कार्टून्स हैं जो साइंस पे आधारित है। ये हमको सिर्फ हंसाते नहीं है, लेकिन हमको ये नई रिसर्चेस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, डाटा कंसेप्ट्स के बारे में बहुत सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं। आपने देखा होगा हमारे टीवी चैनल पे कितने कार्टून चैनल्स आजकल आते हैं टीवी पे। और घर में आपका अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो कई बार आपको IPL का मैच देखना है, या आपको देखना है कि सुशांत सिंह मर्डर केस में क्या हुआ, लेकिन उसकी मम्मी बोलेंगी पहले सिंचन लगा दे, नहीं दूध नहीं पिएगा। तो इसलिए आई थॉट व्हाई नॉट टू यूज कार्टून्स इन साइंस, जबकि कार्टून तो पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। मेनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दे वॉच टॉम एंड जेरी, दे वॉच मिस्टर बीन। तो अब साइंटून में होता क्या है, एक तरफ तो देखिए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है बाएं, फिर आता है एक कार्टून, यानी ये चेहरा कुछ होता है रंग मजेदार, और कार्टून क्या बोलता है, दैट इज सटायर या व्यंग या कटाक्ष। तो ये 3 खाने मिलके एक साइंटून बनता है। और मैं आपको ये पहला साइंटून दिखा रहा हूं। अगर मुझे मान लीजिए एक लेक्चर देना है फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू पे, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो पैरासाइट हैं, ये बीमारी फैलाने वाले जो हैं, ये
क्या है आखिर। अगर किसी को पैरासाइट ही नहीं पता है तो क्या वो आगे लेक्चर समझ पाएगा। तो आप सबको पता है पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट्स या एनिमल जो दूसरों पे आधारित होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैरासिटोलॉजी। अब यहाँ पे एक कार्टून है और ये जितने भी आप कार्टून देखेंगे दे आर ऑल मेड बाय मी, किसी और ने नहीं बनाया है। और यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पैरासिटोलॉजी में कुछ ये पैरासाइट्स हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे स्केरिस राउंड वर्म 1 फीट का करीब होता है, ये एंट अमीबा है जो खूनी पेचिश या ब्लड डिसेंट्री फैलाता है, ये सांप जैसा बड़ा भारी टीनिया सोलियम है, यानी अगर हम इन्फेक्टेड पोर्क मीट खा लें तो हम उससे आ सकता है, और ये 5 फीट लंबा हो जाता है हमारे शरीर में। तो आप सोच सकते हैं इसीलिए हमारे देश में आपने देखा होगा हम पोर्क मीट नहीं खाते हैं। अब ये सारे पैरासाइट जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं वो आप पढ़िएगा इसमें देख, वो हमसे कह रहे हैं see these scientists, they exploit us for publishing research papers, getting PhD, attending seminars, visiting abroad, and still they call us parasite। असली पैरासाइट है कहाँ, असली पैरासाइट ये डिश में नहीं है बल्कि दाहिने खड़ा हुआ है, जो उन्हीं पैरासाइट में PhD कर लेता है, फॉरेन घूम लेता है, पोस्ट डॉक ले लेता है, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो वो अमेरिका का सिटीजन भी बन जाता है, बेस्ड ऑन द वर्क ही हैज कैरीड आउट ऑन दीज पैरासाइट्स। ये मेरा जो कार्टून आप देख रहे हैं ब्राउनिन मूवमेंट पे, ये केमिस्ट्री इंटरनेशनल न्यूयॉर्क में छपा और पूरी दुनिया में भेजा गया। ब्राउनिन मूवमेंट साइंस में एक चीज है जिसमें अगर एक ग्लास में पानी रखा हुआ है तो वो पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो शांत नहीं होते हैं, बल्कि वो दे कीप ऑन बम्बार्डिंग ईच अदर, वो जिग जैग मूवमेंट उनका होता रहता टेढ़ा मेढ़ा। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर साहब स्कूटर चला रहे थे बड़े टेढ़े मेढ़े ढंग से, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया और उसने कहा कि देखिए प्रोफेसर साहब ये आपकी लैब नहीं है, और याद रखिए आप एक आदमी हैं, पार्टिकल नहीं है जो आप सड़क पर ब्राउनिन मूवमेंट कर रहे हैं, अगर चालान मैंने कर दिया तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो अब ये कितने सिंपल ढंग से ब्राउनिन मूवमेंट को एक्सप्लेन कर देता है। अब मैं आपको एक ऐसा कार्टून दिखा रहा हूं जिसने पूरे लखनऊ की सूरत बदल दी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को, तो मैं एक लेक्चर दे रहा था उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, मेरे बगल में मंत्री जी बैठे थे, डायरेक्टर एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट जो IAS ऑफिसर थे, और वहां मैंने एक कार्टून दिखाया और मंत्री से कहा कि मंत्री जी अगर आप, बड़ा अच्छा होगा अगर आप इस पे एक्शन लें। तो लखनऊ में जो पहले 25 साल पहले नगर निगम का जो ट्रक था वो इस तरह से कूड़ा लेके निकलता था, कोई ढका नहीं होता था। अगर आप उसके पीछे हैं तो देखिए पता नहीं कब आपके ऊपर एक भीगा जूता, पॉलिथीन गिर पड़े, कुछ और गिर पड़े, आप देख रहे हैं। और ये कहावत थी कि आपने सुना होगा ना कि महापुरुष जिस तरह जाते हैं अपने पद चिन्ह छोड़ते जाते हैं, तो वैसे ही इस ट्रक की हालत थी कि जिस रास्ते से गुजरता था इसके पद चिन्ह वहां छूटते रहते थे। तो मैंने ये कार्टून दिखाया और इसमें आप देखिए गौर से ड्राइवर को, कोई टेंशन नहीं, मुस्कुरा रहा है बिंदास। उसका दोस्त लेकिन बहुत चक्का है, तो पूछ रहा है कि यार तुम ये 7-8 ट्रक कूड़ा लेके सुबह से शाम तक लखनऊ में निकलते हो, फेंकते कहाँ पे हो? उसने कहा अरे इसमें क्या टेंशन है, कूड़ा ट्रक में भरा, शहर के 4 चक्कर लगाए, कूड़ा खत्म, फिर लोड कर लिया। तो अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने मंत्री जी ने तुरंत खड़े होके कहा भाई म्युनिसिपल कमिश्नर लखनऊ के हैं यहाँ पे? बोले हाँ सर। एक साहब खड़े हुए, बोले आपने अभी देखा कार्टून, आपको 15 दिन का समय है, 15 दिन बाद से एक भी लखनऊ नगर निगम का ट्रक खुड़े में कूड़ा नहीं ले जाएगा। और इस छोटे से एक कार्टून ने सारे कूड़ों को ढक दिया, ट्रकों को। अब आप देखिएगा जब भी कूड़े का ट्रक आपके पास से निकलेगा तो वो एक कवर्ड होता है और वो इस तरह से स्पिलेज या कूड़ा गिराता हुआ नहीं चलता है। अब मैं साइंस के विषयों पे लेक्चर देने लगा। पहला मेरे टॉपिक था ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दूसरा फिर आया एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, फिर आया टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, सेफ्टी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपकी प्रेजेंटेशन शायद बंद हो गई है। नहीं, लेकिन हमारी स्क्रीन पे चल रही है। आपकी स्क्रीन पे चलती रहेगी सर, वो यहाँ से शायद एक बार फिर से कर लेते हैं। ये शेयरिंग मोड में है सर? अभी मैम दिखाई दे रही है। नहीं, बीच में ये बंद हो गया था, हमें पता नहीं लगा। हाँ सर, इसीलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया, सॉरी सर। नाउ सर इट्स विजिबल, थैंक यू सर। नाउ यू कैन। अभी दिख रहा है आपको? हाँ सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से दिख रहा है। लेकिन ये अभी हमें नहीं दिख रहा है सर। आपको नहीं दिखेगा, हमको दिख रहा है, लेकिन आपने स्क्रीन शेयर की होगी। आपने स्क्रीन शेयर किया ना सर? हाँ, फिर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, 1 मिनट। जी सर।
अभी दिखा आपको ना? बढ़िया, अब आ गया? अभी दिखा क्या? हेलो? Now it's visible. अच्छा, तो अब मैं जैसे आपसे कह रहा था कि मैं सिर्फ ड्रग एंड रिसर्च पे नहीं, बल्कि मुझे आमंत्रण मिलने लगे नए नए विषयों पे। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमें ड्रग रिसर्च नहीं, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ पे आप क्या बोल सकते हैं। अब मेरे लिए एक चैलेंज था एक नए विषय पे लेक्चर तैयार करना। फिर आया कि भाई आप फॉरेस्ट्री बायोडायवर्सिटी पे बोलिए, फिर एक दिन ओजोन लेयर, फिर डीएनए टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ग्लाइकोबायोलॉजी। ये साइंस के बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और आसान नहीं था, लेकिन एक जुनून था। मैंने लेक्चर ये बनाने शुरू किए। और ये जो आप सीन देख रहे हैं ये है टर्की का। ये यहाँ पे मेहमत आकिफ एरसोवा यूनिवर्सिटी है। मेहमत आकिफ वो सज्जन है जिन्होंने टर्की का राष्ट्रगीत गान लिखा है। तो वहां मैं लेक्चर दे रहा था। आप देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ थी ऑडिटोरियम में कि लोग जमीन में बैठे आपको दिख जाएंगे बाईं तरफ, पीछे लोग खड़े हुए हैं। और इस तरह से इट वाज ए जैम पैक्ड लेक्चर फॉर 2 आवर्स। और इसमें फिर 2 घंटे के लेक्चर के बाद, लंच के बाद 2 घंटे का एक सेशन था, हाउ टू मेक साइन टून्स, हाउ टू क्रिएट साइन टून्स। तो मैंने एक लाइव वर्कशॉप करी थी टू ट्रेन देम। और इस तरह से अब दिक्कत क्या है कि जब इंडिया में आप कोई नया काम करते हैं ना, तो कोई आपको सुनता नहीं है। आपके हर आदमी आपके टांग खींचने लगता है। मुझसे भी कहा जाता था, यार तुम पागल हो, साइंटिस्ट हो, यू आर टू ड्रग रिसर्च कर रहे हो, ये क्या कार्टून बनाना शुरू कर दिया वाहियात काम। बट आई न्यू कि ये तो एक नया क्रांतिकारी कदम है। इट हैज मेड साइंस एजुकेशन, साइंस टीचिंग, साइंस कम्युनिकेशन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो मैंने सोचा इस काम को करना चाहिए। लेकिन आपको पता है ना, भारत में आपको तब तक रिकग्निशन नहीं मिलेगी जब तक आपको विदेशों में न पूछा जाए। तो मैंने अपने काम को भेजना शुरू किया विदेशों की बॉडी को। उसमें पहला था अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, विच इज द बिगेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। और उन्होंने केमटेक नाम के साइंटिफिक जर्नल में इसको छापना शुरू किया, विच इज नाउ कॉल्ड केमिकल इनोवेशन। फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंग्लैंड में छपने शुरू हुए। फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री स्वीडन, फिर WHO, यूनेस्को, UNEP। एक बहुत लंबी लिस्ट। जिन्होंने 1 साल के अंदर इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया, ये आम आदमी तक विज्ञान को पहुंचाने का इट्स ए वेरी नॉवेल अप्रोच, इट्स ए वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंजॉयबल अप्रोच। अब इसमें क्या हुआ, नेशनल लेवल पे दिक्कत क्या आ रही थी कि उसके बाद शुरू हुआ, तो मैंने जहां जहां मैं लोगों को पता लगा, लगभग मैं सारी IITs में लेक्चर देने जाता हूं। आई डिलीवर लेक्चर टू IAS ऑफिसर, आई डिलीवर लेक्चर टू IPS, आई डिलीवर लेक्चर टू IFS ऑफिसर। मैं साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर को और साइंस कम्युनिकेटर्स को, आर्मी को, एयरफोर्स को, यहां तक कि जेल में कैदियों को से लेके बच्चों को स्कूल में लेक्चर देता हूं। व्हाट इज द पावर हियर? द पावर इज ड्यू टू साइन टूल्स। कि वो साइन टूल के माध्यम से कोई भी प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया हो जाता है कि कैन यू बिलीव, अभी महीने भर पहले मैं पूरे देश के टॉप रेलवे के IAS ऑफिसर्स को लेक्चर दे रहा था। 4 घंटे का लेक्चर कि भारतीय रेलवे अपने को मॉडर्नाइज कैसे करेगी टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज। 4 घंटे का लेक्चर आसान नहीं होता है, पहली बात तो बोलना, और दूसरा लोगों को सुनना भी। बट इट वॉज बिकॉज ऑफ द साइन टूल दे एंजॉयड। अब 1 साल के अंदर जो कमेटी नोबेल प्राइज देती है, उसने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया और मुझे इनवाइट किया 32nd इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वर्ल्ड कांग्रेस में लेक्चर देने के लिए। मैंने यहाँ एक पेपर भेजा, जिस पेपर का टाइटल था साइन टूल। और मैंने प्रपोज किया कि हम केमिस्ट्री के रूल्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग साइन टूल्स। तो यहाँ पे आपको याद होगा एक हुंस रूल होता है। हुंस रूल क्या है? बेसिकली न्यूक्लियस एटम में होता है। एटम तो आपको याद होगा, एटम में एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अच्छा, जिस रास्ते पर वो घूमते हैं, वो जो गोल सर्किल सा रास्ता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो इन ऑर्बिटल में पहले सबसे पास न्यूक्लियस की होती है S, फिर P, फिर D, फिर F। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। तो अगर मान लीजिए हम P इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की बात करें और इसमें मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा होगा दाहिने तरफ ऊपर। तो ऐसा नहीं कि पहले खाने में 2 चले जाएं, दूसरे में 2 चले जाएं, नहीं, इसका एक नियम है। जैसे अगर हमें क्लास में सबको समोसे बांटने हो, तो हम ऐसा नहीं होगा कि आगे के लड़कियों को तो डबल डबल देते हैं, पीछे वाली खाली बैठी है, नहीं। तो मैम क्या बोलेंगे, पहले एक एक समोसा बांट देते हैं, अगर बचेगा तो भाई डबलिंग कर लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद डबलिंग स्टार्ट होती है। दिस इज कॉल्ड हुंस रूल।
अब यहाँ पे प्रोफेसर साहब अपनी वाइफ के साथ आए हैं और यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, और इसमें लिखा हुआ है इस कॉन्फ्रेंस में जो आप जिस होटल में ठहरेंगे उसमें डबल रूम का अलॉटमेंट जो है वो हुंस रूल पे आधारित है। दैट मीन्स द रूम विल नॉट बी डबल्ड टिल दे आर ऑक्युपाइड सिंगली फर्स्ट। तो क्या होगा, प्रोफेसर साहब तो एक रूम में, मैडम दूसरे रूम में, when the doubling starts you can imagine what will happen। अब मैं कुछ साल बाद ये गया नोबल म्यूजियम, ये स्टॉकहोम स्वीडन का है। उस समय दुर्भाग्यवश मैं नहीं जा पाया था भारत सरकार से, जब तक परमिशन मिले तब तक वो लेट हो चुका था, लेकिन मेरा ये पेपर छपा वहां स्वीडन में और पूरी दुनिया से मुझे लेटर आए और मुझे खुशी है कि 2013 में आई वेंट टू स्वीडन, स्टॉकहोम गया, ये नोबल म्यूजियम है, वहां पे जाके मैंने देखा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी देखी जहां पे कभी मुझे बुलाया गया था लेक्चर देने के लिए। अब क्या हुआ कि अब मुझे लगा कि इस चीज को पॉपुलर करना है, क्योंकि ये नया कंसेप्ट था दुनिया में और इंडिया से शुरू था, तो इंडियन को अगर कोई काम करना है तो इट्स वेरी वेरी टफ। तो सवाल था ये कैसे संभव हो, तो इसकी मैक्सिमम पॉपुलैरिटी होनी थी। अब आप इमेजिन करिए, ये आपके सामने दिख रहे हैं, रॉबर्ट हावर्ड ग्रब्स हैं, अमेरिका के नोबेल प्राइज विनर हैं, और इनको मैंने कार्टून प्रेजेंट किया। इसमें नीचे आप पैरासाइट वाला और नीचे ब्राउनन मूवमेंट वाला देख रहे होंगे। ही वॉज वेरी हैप्पी और ही लाइक्ड इट वेरी मच। दूसरा क्या है, ये दूसरे नोबेल लॉरेट हैं सर रिचर्ड जॉन रॉबर्ट्स, और ये फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, और इन्होंने अभी मेरे काम की तारीफ करी थी 2017 में वाइब्रेंट गुजरात समिट में जब ये भारत आए थे। फिर मैंने एक इसकी वेबसाइट बनाई www.scientune.com, और जिसका उद्घाटन किया प्रोफेसर डेविड ब्लैक ने। ये जो है सेक्रेटरी जनरल है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC स्वीडन, और IUPAC ही वो बॉडी है जो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स का नाम फिक्स करती है, नाम डिसाइड करती है। ये IUPAC की फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर निकोल बोरो, जो फ्रांस की हैं, और शी वाज माय बेस्ट फैन। मैंने उनको देखिए वो हुंड वाला प्रेजेंट किया, और मैं 10 दिन उनके साथ था, तो मैं उनको हर 5 मिनट में एक नया साइंटून बना के देता था ऑन द स्पॉट। शी वाज वेरी हैप्पी। अब ये आपके सामने दिख रहा है, दिस इज राष्ट्रपति भवन। 2006 में मुझे यहाँ पे जाने का मौका मिला। डॉक्टर कलाम साहब आपको दिख रहे होंगे बाएं तरफ। मैं आपको इस स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूं कि जब मैं कलाम साहब से लंच टाइम में मिला तो मैंने उनको एक कार्टून बना के दिखाया ऑन द स्पॉट। कलाम साहब बड़े खुश हुए, बोले तो डिटेल थोड़ा पूछा कि भाई व्हाट डू यू डू विद दीज कार्टून्स। तो हमने बताया कि सर आई डिलीवर लेक्चर अराउंड द वर्ल्ड। तो बोले कहाँ तक लेक्चर दिए। तो मैंने कहा सर याद करके बताता हूँ। तो मैंने बताया भाई नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर टर्की, फिर चाइना, फिर स्पेन, फिर उसके बाद पोर्तुगल, फिर उसके बाद फ्रांस, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद USA, प्यूर्तो रिको। तो मैंने कहा सर लगभग इतने देशों में मैंने लेक्चर दिए हैं। तो बोले व्हाई डोंट यू मेक लेक्चर ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। और इस तरह से कलाम साहब की प्रेरणा से मैंने एक नया विज्ञान का विषय सेलेक्ट किया, नैनो टेक्नोलॉजी। और मुझे खुशी है कि मैं भारत सहित विदेशों में 100 लेक्चर में इस विषय पे दे चुका हूँ, और ये वो साइंस है जिसको भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर दोबारा जब मैं कलाम साहब से मिला तो हम लोग एक ही कॉन्फ्रेंस में थे, दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी थी, और कलाम साहब को मुझे याद था कि वो मुझसे मिले थे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी जब मैंने उसको बताया कि सर मैं साउथ अफ्रीका गया था और मैंने वहां अपना कार्टून डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भिजवाया था। अब मैं ये टॉपिक आप देख रहे होंगे, इतने सारे टॉपिक्स है, 27 यहाँ हैं, 4 और हैं इसमें नहीं है। तो ऑन 31 डिफरेंट टॉपिक्स आई डिलीवर लेक्चर अराउंड द वर्ल्ड। तो आप देखो इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसा बहुत टेक्निकल बोरिंग सब्जेक्ट है, DNA टेक्नोलॉजी है, ग्लाइकोबायोलॉजी, ये बड़े बोरिंग सब्जेक्ट हैं साइंस के, लेकिन दे ऑल कम थ्रू कार्टून्स। ये जो 4 आपको टॉपिक दिख रहे हैं, दे वर द टफेस्ट लेक्चर ऑफ माय लाइफ, जिनमें मुझे कई महीने लगाने पड़े, ओनली देन आई कुड मेक द लेक्चर। मैंने आपसे बताया था कि मैं किन किन लोगों को लेक्चर देता हूं, ये एक लिस्ट है उन लोगों की। अब जब मैंने 600 लेक्चर ले लिए पूरे दुनिया में और लगभग कई विषयों पे विज्ञान के, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक नई साइंस बना दी जाए। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, दिस इज पोर्ट एलिजाबेथ, ये साउथ अफ्रीका में है और गोवा की तरह है। तो मेरा यहाँ पे एक लेक्चर था, और जो वहां पे थी अफ्रीकन साइंस कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पूरी दुनिया से लोग आए थे, और मैंने सोचा क्यों ना इसको एज ए नया साइंस सब्जेक्ट पॉइंट किया जाए। तो मैंने पहली बार वहां पे अनाउंस किया साइंटोनिक्स। तो मैंने कहा साइंटोनिक्स इज ए न्यू ब्रांच ऑफ साइंस
जहां पर आप साइंस को आम आदमी तक यूजिंग साइंटून्स पहुंचा सकते हैं। और इस तरह से आई एम वेरी हैप्पी, एक दुनिया की नई साइंस बन गई। एज आई टोल्ड यू, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन साइंटून एंड साइंटोनिक्स। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी पहला दुनिया का विश्वविद्यालय बना जिसने एमएससी मास कम्युनिकेशन के सिलेबस में साइंटून शामिल किए। फिर ये बीएड में आ गया राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, और अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में भारत में, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, टर्की में, नेपाल में, ब्राजील में ये पढ़ाया जा रहा है, और अब तो पीएचडी भी होने लगी है। सो यू कैन सी, एक मैंने अपनी हॉबी को, मेरा जो अलग जो काम था एज ए साइंटिस्ट वो बिल्कुल अलग था। मैं जो लेटेस्ट मैंने ड्रग बनाई थी वो ब्रेन हैमरेज की दवा है, ब्रेन स्ट्रोक की दवा है, हल्दी से। लेकिन ये मेरी हॉबी थी और मैंने हॉबी को कहां तक ले गया। तो ये आपको, आप सब बच्चे जितने हैं सब में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा। ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट पोटेंशियल, दैट टैलेंट, दैट हॉबी एंड मेक इट, वो ऐसा आप उसको अनोखा बना दीजिए कि पूरी दुनिया आपको सलाम करे। तो मैं आपको कुछ साइंटून दिखाता हूं। बड़ी तेजी से जंगल आजकल कट रहे हैं, आपने देखा होगा। आज से अगर लखनऊ के आप जितने लोग हैं, सन 1980 में जहां कपूरथला है अलीगंज में, आज यहाँ पे आम की बाग हुआ करती थी, आम अमरूद की, एक भी बिल्डिंग, एक भी घर नहीं था। लेकिन आज क्या है, वहां कंक्रीट का जंगल है, पेड़ इक्का दुक्का है। तो आप सोचिए पेड़ जितनी तेजी से कट रहे हैं, और लगभग 46 से 58 हजार स्क्वायर माइल्स का एरिया हर साल दुनिया से काट दिया जाता है। और ये जो रेन फॉरेस्ट है हमारे, अभी मैं अमेजोन के रेन फॉरेस्ट जो ब्राजील में, उनको बचाने के लिए भी आई एम डिजाइनिंग साइंटून्स। तो वो रेन फॉरेस्ट भी 1 मिनट में 36 फुटबॉल फील्ड के बराबर रेन फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं। देयर आर माफियाज देयर इन ब्राजील जो ये काम करते हैं, और वो लकड़ी जो है वो विदेशों में, अमेरिका, यूरोप खास करके चली जाती है बहुत महंगे दामों पे। तो अगर ऐसे जंगल कटते रहे तो एक दिन तो जंगल कहीं बचेंगे नहीं, पेड़ बचेंगे नहीं। तो ये 2020 है, मैं आपको 3020 में ले चलता हूँ। 1000 साल बाद जब हमारे, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे। तो यहाँ देखिए, एक हमारे देश में पेड़ है तुलसी के, जिसकी हम पूजा करते हैं। वैज्ञानिक कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, मैं साइंटिस्ट हूं तो मुझे पता है, और कोरोना काल में आपको तुलसी की इंपॉर्टेंस जरूर पता लग गई होगी। लेकिन दो चूहे हैं, 3020 में 1000 साल बाद बात कर रहे हैं। तो एक चूहा जो है वो अपने दोस्त को बता रहा है कि देखो जो लेडी है ना, इनकी दादी की दादी की दादी की दादी की दादी जो है वो मौलवीगंज में रहा करती थी 1000 साल पहले, और उनके पास असली तुलसी का पेड़ था, और एक 24 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा होता था 2020 में, उससे फोटो लेके लैमिनेट करा के वसीयत पे छोड़ गई थी, जिस पे जल चढ़ रहा है। यानी हमारे भले पेड़ खत्म हो जाए, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार तो रहेंगे ही रहेंगे। अब जिस तरह से अमेज़न के जंगल कट रहे हैं, मैंने आपसे बताया कि 1 मिनट में 50 एकड़ रेन फॉरेस्ट दुनिया से साफ कर दिए जाते हैं। और जो रेन फॉरेस्ट अमेज़न के हैं, उनका 80% हिस्सा वो ब्राजील में। हमारे देश में रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? नॉर्थ ईस्ट में, जो केरला है हमारा, वेस्टर्न घाट पूरा, ये दिस इज रेन फॉरेस्ट एरिया, जहां पे हमेशा बहुत बारिश होती है। तो आप देखिए, ये भी 3020 का समय है। अब अभी तो हम मास्क लगाए, ये देखिए दोनों बाप बेटे जो है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर इन्होंने लगा रखा है, पीठ पे बांध रखा है, और पापा से बेटा पूछ रहा है कि पापा ये बताइए, एक फोटो निकली है महिला कॉलेज की जिसमें सारे मैम, सारे स्टूडेंट बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, वेबिनार सुन रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल था 2020 में? तो वो बता रहे हैं अपने बेटे को, बेटा 2020 में एक बड़ी अजीब चीज हुआ करती थी हमारी अर्थ पे, जो ऊपर से हरी होती थी, नीचे से ब्राउन होती थी, एंड इट वाज कॉल्ड ए ट्री। और इसी की वजह से उस समय लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज दिल्ली में ऑक्सीजन स्पा खुल गए हैं, जहां पर 299 रुपए में 14 मिनट आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। आपसे लड़की पूछेगी सर व्हाट फ्लेवर डू यू नीड, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, और आप फ्लेवर बता के उस फ्लेवर में ऑक्सीजन ले सकते हैं। दिस इज द रियलिटी टुडे। और बीजिंग में, चाइना में, कनाडा के माउंटेन्स की हवा बॉटल में पैक करके बेची जा रही है, अमेज़न पे अवेलेबल है। तो यू कैन इमेजिन हम कहाँ आ गए हैं। और ये मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर कार्लोस टेक्सीरा, ये जो है बेसिकली ब्राजील के हैं, लेकिन इनके हाथ में देखिए 3 पोस्टर हैं। 2 तो ये पोस्टर हैं वहां के कार्टूनिस्ट के, जाओ और अस्थमार, तीसरा मेरा है। और ये मेरे साइंटून्स की एग्जीबिशन पूरी दुनिया में लगाते हैं। अभी इन्होंने टर्की में लगाई थी, ब्राजील में, अर्जेंटीना में। अब क्या है कि ये आप पीछे देख रहे हैं, ये वो दोनों कार्टूनिस्ट हैं। ये बाएं तरफ में, मेरे दाएं तरफ जो है, यानी आपके बाएं,
ये जाओ गार्सिया है, दाहिने इस्तेमाल है, बीच में हूँ, वही साइन टून जो आप अभी देख रहे थे अमेजॉन फॉरेस्ट पे, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब अभी मैं आपको थोड़ा सा कोरोना के बारे में बताना चाहूंगा। ये मेरी किताब है जो अगले हफ्ते लॉन्च हो रही है भारत सरकार की तरफ से, और इसका नाम है बाय बाय कोरोना। इसमें खास बात क्या है कि इसमें सारा कोरोना के ऊपर 115 पेज की किताब में सब कुछ साइन टून के माध्यम से बताया गया है। एक आम आदमी, एक रिक्शे वाला भी अगर पढ़ेगा उसको, तो उसको समझ में आ जाएगा कोरोना है क्या, क्यों फैलता है, क्या सिम्टम्स है, क्या, अगर हमें सब्जी सैनिटाइज करनी है तो कैसे करें, है हमें बैग सैनिटाइज करना है तो कैसे करें, अपने को सैनिटाइज करना है तो कैसे करें, वगैरह वगैरह। तो उसमें एक चैप्टर भी है जिसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना, यानी कोरोना के साथ तो हमें रहना होगा। सो व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक, व्हाट केयर वी शुड टेक, व्हाट एक्शन वी शुड डू। यहाँ पे डॉक्टर अकुल पराशर है, मेरे दोस्त निमिष कपूर हैं, और इन्होंने इस बुक को पूरा पब्लिश किया है और ये अगले हफ्ते आ जाएगी। मैं इसी से कोई आपको साइन टून दिखाता हूँ। कोरोना वायरस कोई नई बात नहीं है, कोरोना वायरस तो बहुत सालों से हमारे दुनिया में है। अगर आप डेटॉल का कोई 2 साल पुराना पैकेट ले लीजिए रिफिल वाला, तो उसके बैक में आपको लिखा मिल जाएगा इट किल्स कोरोना वायरस, यानी 2 साल पहले, अभी की बात नहीं है। ये तो हम फरवरी से मतलब दिसंबर 2019 में कोरोना का जो कोविड-19 है, ये जो वैरायटी है, ये जो स्पीशीज है, दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लमेटिक। तो पहले कोरोना मर्स के नाम से था, सार्स आपको याद होगा, मैं उन दिनों विदेश जब जाता था तो लोग मास्क लगाए रहते थे विदेशों की फ्लाइट में, लेकिन सार्स का असर थोड़ा भारत में नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना में ज्यादा हो गया। तो जो कोविड-19 है, इट इज वन ऑफ द वेराइटी ऑफ कोरोना वायरस विच इज वेरी डेंजरस। और आपको पता है हम पिछले मार्च से, और अब अक्टूबर आ गया है, हाउ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। आपको याद होगा पहला लॉकडाउन, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था 8 बजे, और उस संदेश को सिर्फ हम ही आप नहीं सुन रहे थे, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 भी सुन रहा था। और ये देखिए, इसमें दाहिने तरफ कोरोना कह रहा है अपने दोस्तों से कि देखो सारा काम बंद कर दो, कोई रूटीन इन्फेक्शन नहीं, सब काम ठप। पहले इस आदमी को हमें सुनना है जो भारत का प्रधानमंत्री है। 8 बजे ये क्या बोलता है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है, अगर हम वो नहीं समझ पाए तो हम कभी भारत में कोरोना नहीं फैला पाएंगे। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि एपिडेमिक और पैंडेमिक, ये 2 शब्द आए हमारे सामने। एपिडेमिक तो पहले से था, जैसे प्लेग होता है, चेचक होती है, लेकिन पैंडेमिक क्या था? एक महामारी जो पूरी दुनिया को जब इफेक्ट करती है बहुत विशाल स्तर पर, देन इट इज कॉल्ड पैंडेमिक। तो ये जो पैंडेमिक है, पहली बार हमने नाम सुना अपनी याददाश्त में, नहीं तो हमने एपिडेमिक सुना था हम सब ने, क्योंकि पिछले 100 साल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई इतनी बड़ी जो पैंडेमिक कहलाए, जो हमारी आपकी याद में हो। मतलब अब यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट का डिपार्चर लाउंज है, और ये कोरोना अटैची लेके फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं। इसमें एक जो उनका बॉस है वो सबको समझा रहा है कि देखो हमें 5 कॉन्टिनेंट जाना है, हर जगह कोरोना फैलाना है। विश यू वेरी हैप्पी जर्नी टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सोप, सैनिटाइजर, पीपी किट्स, ये हमारे जानी दुश्मन है, इनसे बहुत बच के रहना है, नहीं तो हम कोरोना कभी फैला नहीं पाएंगे। अब एक कोरोना में और दिक्कत आई। दिक्कत क्या थी? कई मरीजों में कुछ लक्षण ही नहीं आते। मेरे CDRI में अभी एक साइंटिस्ट को कोरोना हुआ, न उसको बुखार है, न खांसी, न जुकाम, न सांस लेने में दिक्कत, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो पता लगा नॉर्मल आदमी से उसमें कोरोना वायरस कोविड-19 डबल है। तो अब आप देखो कि ऐसे आदमी जिनको खुद पता नहीं इनको कोरोना है, दे विल कीप ऑन इन्फेक्टिंग अदर्स, और उसमें जो आदमी जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है वो जब उससे इन्फेक्ट होगा तो शायद उसकी जिंदगी मौत का सब मामला हो जाएगा, लेकिन वो आदमी नॉर्मल घूमता रहेगा। तो इसमें एक चीज पाई गई, जो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं, यानी जिनमें लक्षण नहीं होते हैं, उनमें खास बात क्या है, अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपको गुड़ मीठा नहीं लगेगा। आप अगर सिगरेट की स्मेल लेंगे या किसी अगरबत्ती की स्मेल लेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगी या बहुत हल्की लगेगी। ये दोनों सिम्टम है। इफ देयर इज अ लॉस इन द टेस्ट एंड स्मेल, देयर आर चांसेस यू आर हैविंग कोरोना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक साहब देखे हैं, वो उनको खाना अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने वाइफ से कहा खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, लगता नमक नहीं है सब्जी में, नमक डालना भूल गई हो क्या? तो उनकी वाइफ बहुत गुस्से में थी, बोले ऐसा है कि ये जो है ना, आप जो बात कह रहे हैं इसका मतलब आपको कोरोना इन्फेक्शन हो गया है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से आपके बारे में पता है, 40 साल हो गए शादी के, हैं, आपको जिंदगी में कभी मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया तो आज कहाँ से आएगा? तो बेटर यू गो फॉर कोरोना टेस्टिंग, एक्चुअली दैट इज द रीजन।
अब आपको बताएं, अभी शॉपिंग मॉल नहीं खुल रहे हैं, पिक्चर हॉल नहीं खुल रहे हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े पिक्चर हॉल नहीं खुल रहे हैं। कारण क्या है कि आप पिक्चर हॉल में बैठते हैं तो एयर रीसर्कुलेट होती है, अगर एक को कोरोना है, कोविड-19 है, तो सबको हो सकता है। इसका समाधान अभी लेटेस्ट निकला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको साथ शेयर कर रहा हूं, नोबडी नोज अबाउट दिस न्यूज। अभी साइंटिस्ट ने एक निकल फोम का एक ऐसा नैनो मटेरियल तैयार कर लिया है, उसके थ्रू जब आप एयर को पास करेंगे तो 99.8 जो कोविड-19 है वो मर जाएगा, दोबारा राउंड में पूरा मर जाएगा, फिर उसको कूल करके यू कैन रीसर्कुलेट इन द पिक्चर हॉल या शॉपिंग मॉल, और तब इस तरह से एयर से जो कोरोना फैलने के चांसेस थे वो नहीं होंगे। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये भी इसके क्रिस्टल नैनो साइज के होते हैं। 1 नैनोमीटर जो है 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा होता है, 10 to the power -9, 1 बिलियन ऑफ ए मीटर। 40 सेंटीमीटर साइज के जो टाइटेनियम ऑक्साइड क्रिस्टल है, इनको एसी में लगा देते हैं, जो हमारे आजकल एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं, इनमें इसकी कोटिंग होती है, जिससे जब भी कोई बैक्टीरिया निकलता है हमारे एयर कंडीशन से, तो वो जो है हमेशा क्या करता है कि आपको उसकी जितनी भी पैथोजेंस हैं वो हमेशा मार देगा इस तरह से। अब मैं आपको और बता, जिसमें कार्टून देखे, 2 बैक्टीरिया आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और ये जो दोनों बैक्टीरिया बड़े दुखी हैं बेचारे, और ये दुखी इसलिए हैं क्योंकि एक बैक्टीरिया दूसरे से कह रहा है देखो ऐसा है कि खबरदार गलती से भी एसी के पास मत जाना। कल ही चाचा जो है एसी के पास गए कि ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, और जैसे ही एसी चला बेचारे वहीं धाराशायी हो गए, ऊपर चले गए। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग 50 बार आपने सुना होगा, व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग है क्या कि हम अब दूरी बना के रखें लोगों से, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। तो अभी क्या हुआ कि मिनिमम 6 फीट तो आपको रखना है, लेकिन अगर 3 फीट तो आपको रखना ही रखना है, लेकिन अगर आप 6 फीट दूर रहेंगे किसी और आदमी से, और अगर गलती से उसको कोरोना है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने हॉस्पिटल में गया CDRI में, वहां एक मेरे दोस्त वो कोरोना पॉजिटिव थे, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने N95 मास्क पहन रखा था, उन्होंने भी मास्क पहन रखा था, हम दोनों के बीच की दूरी 3 फीट थी, मुझे पता नहीं था उनको कोरोना है, और जब मुझे पता लगा तो मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन थैंक गॉड कि मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ। सो ऑलवेज वियर मास्क, और मास्क में नाक और मुंह कवर करके निकलिएगा, हमेशा ताबीज की तरह गले में मत लटकाइएगा। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, इट इज नॉन फार्मास्यूटिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन और इन्फेक्शन कंट्रोल। ये दूरी बनाए रखें तो कोरोना अगले के मुंह से उड़ के भी आएगा तो आप तक नहीं पहुंचेगा। अब मैं आपको एक डिजाइनर मास्क इंपोरियम ले चल रहा हूं, मीनाबाद में, समझ लीजिए है ये आपके पास में। यहाँ पर एक महिला कॉलेज की जो प्रोफेसर हैं वो मास्क खरीदने गई। अब जो शॉपकीपर, उसको पता है मैडम महिला कॉलेज में पढ़ाती है तो बड़ा स्मार्ट बंदा है, और ये भी पता है कि वो डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा जैसी हैं, साइंस पढ़ाती हैं, तो वो कह रहा है कि मैडम हम लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और हमने एक नया सोशल डिस्टेंसिंग मास्क बनाया। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो आपने सुना होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मास्क नहीं सुना होगा। इसने कहा कि दुकानदार ने कि अगर कोई भी आपका 3 फीट से 1 इंच भी क्लोज हुआ तो ये सायरन बजा देगा। इसमें बिल्ट इन वाईफाई है, ब्लूटूथ है, सबसे खास बात क्या है मैडम, ये आपकी साड़ी के कलर के हिसाब से अपना कलर बदल लेता है। दिस इज द लेटेस्ट, यू कैन बाई, और मैं आपको 10% कंसेशन भी दूंगा क्योंकि मेरी बेटी महिला कॉलेज में पढ़ती है। अब मैं आपको बताऊं कि कोरोना में आपको प्रिकॉशन क्या लेने हैं। पहली बात, प्लीज वियर अ मास्क, आपका जिसमें नाक और मुंह कवर होना चाहिए, प्रेफरेबली वियर N95 मास्क। नॉर्मल मास्क जो आप पहनते हो ना, वो धूल उल के लिए तो सही है, लेकिन कोरोना के लिए सही नहीं है। हमेशा हाथ क्यों धोने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी सरफेस छू लेते हैं, कहीं आप किसी कार छू ली, किसी की रेलिंग छू ली, कहीं जगह पे आपका हाथ पड़ गया, शीशे पे, लिफ्ट में हैंडल आप खोल रहे हैं दरवाजे का, तो अगर वहां कोरोना किसी की वजह से लगा हुआ है तो आपको हो जाएगा। तो जब आप हाथ धोते हैं साबुन से 20 सेकंड से 30 सेकंड तक, तो वो कोरोना ब्रेक हो जाता है एंड इट इज किल्ड। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। जो खास बात कोरोना ने हमको सिखाई वो ये है कि हमें फिर से याद दिलाया उसने कि आप योगा करना भूल गए थे, आप हल्दी, च्यवनप्राश, गिलोय, लेमन, जिंजर, इनको खाना भूल गए थे। वापस आइए तुलसी पे, वापस आइए हल्दी पे, और योगा करना जो है आज रेगुलर
वॉकिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आपको पता है अगर आप फिट नहीं होंगे तो आने वाले समय में यू विल नॉट सर्वाइव, इन द सेंस कि अगर आपको विदेश जाना है और आपका आरोग्य सेतु ऐप कहता है यू आर नॉट सेफ, तो आपको फ्लाइट में टेक ऑफ नहीं करने दिया जाएगा, या कहीं भी आप जाएंगे अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो कोरोना जैसे आगे भी इन्फेक्शन आएंगे, यू विल बी द फर्स्ट विक्टिम। अब यहां पर आप देखिए बाल कटाने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो कई लोगों को लग रहा था बाल कटाने के लिए सबसे आएगी, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस वही हैं। तो लोगों को लगा कि हम लोग भी, रामायण आ रही थी उन दिनों तो लोग सोच रहे थे थोड़े दिन बाद हर आदमी जामुन जैसा दिखेगा, बाल तो कटने नहीं, दाढ़ी कटनी नहीं है तो क्या करें। तो यहाँ दाहिने तरफ आप देखिए एक साहब हैं वो बाल कटाने गए हैं, सड़क छाप, बिल्कुल सड़क पे एक दुकान लगाता था नाई, तो सोचा जाएंगे कटा लेंगे 2 मिनट में, उसमें क्या। लेकिन नाई इज वेरी वेरी एडवांस, वो बड़ा अवेयर है। उसने कहा देखो ऐसा है ये लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे नहीं काट देंगे बाल, पहले ये फॉर्म ले जाओ, आप इसको भरो, इसमें आधार कार्ड नंबर डालो, आप ट्रेवल हिस्ट्री रिकॉर्ड पूरा दो, लेटेस्ट कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट लगाओ, आरोग्य सेतु आप डाउनलोड करो, फिर मुझे ऑनलाइन अप्लाई करो हेयर कटिंग के लिए। अब मैं जो एक ओटीपी भेजूंगा आपको, यू कम बैक विद दैट विद योर ओन सैनिटाइजर, तब मैं आपके बाल काटूंगा। अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़ी देर में और साइन टूल के माध्यम से बताने के लिए कि क्या इनोवेशन क्या होता है। मैंने आपसे कहा था ना बी इनोवेटिव। तो अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया 5 जून को, ये मनाया गया कोलंबिया में जो साउथ अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में है। यहाँ पे बीच में एक महिला आप देख रही हैं, शी इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनका नाम जो है वो इंगर एंडरसन है। इंगर एंडरसन ने हमको कहा कि अगर हमें 2020 को अगर हम देखें तो जो एक लेसन हमको बहुत बड़ा मिल रहा है वो ये है कि हमें नेचर की तरफ वापस जाना होगा टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ह्यूमंस हैव। आज की जो समस्याओं का समाधान है उसके लिए हमें नेचर की तरफ देखना होगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? जो एक नया विषय आया जिसका नाम है बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग। ये विषय क्या है? जनाइन बेनेस एक अमेरिका की, उन्होंने ये विषय शुरू किया और उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है भाई, हम 30 साल से टीचर हैं, 40 साल से साइंटिस्ट हैं, लेकिन नेचर का एक्सपीरियंस है 3.8 बिलियन ईयर्स, यानी जब से पहला बैक्टीरिया बना है और आदमी तक करोड़ों साल की रिसर्च इस नेचर ने करी है और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अगर हम उनसे सीख लेंगे तो हमारी आने वाली समस्याएं जो होंगी वो नहीं होंगी। अब मैं आपको एक सीन ये आपको दिखाना चाहता हूं, व्हाट इज बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग, यानी नेचर से इंस्पायर्ड साइंस क्या होती है। मेरे थोड़े दिन पहले दोस्त की मम्मी की डेथ हो गई। मैंने पूछा भाई क्या हुआ आंटी को, वो तो ठीक ठाक थी। तो मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं मम्मी तो ठीक थी बिल्कुल, उनको ना डायबिटीज थी ना हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन वो बाथरूम में फिसल के गिर गई तो उनकी हिप बोन फ्रैक्चर हो गई। 90 साल की थी मम्मी, तो ऑपरेशन हो नहीं सकता था, उसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया एंड शी डाइड। अब ये ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे आसपास होती हैं। हम यंग अगर हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे प्लास्टर चढ़ा के, लेकिन जो बूढ़े लोग गिरते हैं कहीं भी तो उनके लिए प्राण घातक हो सकता है। और अक्सर हम फिसलने से गिरते हैं, खास करके आजकल के जो बाथरूम हम बना रहे हैं। अब आपको देखिए इस समस्या का समाधान कैसे निकलता है। आपके सामने एक छोटा सा मेढक दिख रहा है जिसको हम ट्री फ्रॉग बोलते हैं, जो रेन फॉरेस्ट एरिया में होता है, यानी जहां हमेशा बरसात होती रहती है। मैं उस वैज्ञानिक से अभी चीन में मिला जिसने ये रिसर्च करी है। और पहले आप देखिए ये जो मेढक है ये लखनऊ के मेढकों की तरह जंप करके नहीं चलता है। कैसे चलता है जरा सा आप गौर से देखिए इसको पहले। आपने देखा ये जंप नहीं कर रहा है बल्कि इट वॉक्स लाइक अस। और खास बात क्या है, ये कभी फिसल के गिरता नहीं है नीचे, लुढ़क गया, कूद गया नीचे या गिर गया। सो व्हाट हैपेंड, उस चाइनीज साइंटिस्ट ने ये देखा कि आखिर इसकी पकड़ इतनी मजबूत कैसे होती है। जब उसने स्टडी किया तो उसने पाया कि ये इसकी बॉडी जो ग्लिम्स होते हैं, यानी जो पैर होते हैं इसके, यहाँ पे ये ग्रूप्स जैसे आपको लाइनें दिख रही हैं, इनसे जैसे ये ग्रिप बनाता है ऐसे पानी किनारे चला जाता है।
फिर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कई हजार ग्रिप पॉइंट होते हैं, जिससे ये बहुत पक्की जो है अपनी पकड़ बनाता है। और उसने इसको सीख के ऐसे जूते, चप्पल, सैंडल डिजाइन कर दिए जिनको अगर आप पहन के किसी भी स्लिपरी सरफेस पे जाएंगे, यू विल नेवर स्लिप, यू विल नेवर फॉल डाउन, और इस तरह से आपकी हड्डी अगर नहीं टूटेगी, सोचिए आप इससे कितने हजार बुजुर्गों की जान बचेगी जो इस तरह से हिप बोन फ्रैक्चर होने से मर जाते थे। तो आपको एक छोटे से ट्री फ्रॉग से कितना बड़ा आइडिया मिला टू डू समथिंग वेरी इनोवेटिव। अब आपने देखा होगा छिपकली सबके घर में होती है, और छिपकली से हम सब डरते हैं बहुत ज्यादा। छिपकली की तरह ये एक गेको होता है। ये जो गेको है हमारे देश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये इसकी स्मगलिंग कॉस्ट क्या है? ये छिपकली जैसा होता है, छिपकली से 10% बड़ा होता है, 1-1 करोड़ का बिक जाता है एक गेको, क्योंकि कैंसर या कई बीमारियों में इसका इलाज है। लेकिन मैं आपकी इसको एक दूसरी चीज के बारे में बताना चाह रहा हूं। इस गेको की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। यानी आप इमेजिन करिए छिपकली की तरह, आपने देखा होगा कभी 2 छिपकलियां लड़ती हैं तो कोई गिरती नहीं है, बहुत तेज दौड़ती है छत पे उल्टा। तो ये गेको जब चलती है तो इसकी पावर देखिए कि जैसे 70 किलो का आदमी 700 किलो वजन लेके छत पे उल्टा चले और गिरे नहीं। दैट इज द ग्रिप पावर गेको हैज। तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो पाया कि 1 सेंटीमीटर में 29,000 ग्रिप पॉइंट हैं इसकी बॉडी में, इसके पैरों में, जिनसे ये पकड़ इतनी मजबूत बनाता है। तो उन्होंने क्या किया, उससे गेको टेप बना दिया है। और ये जो गेको टेप है, ये इसको आप लगा देंगे तो फ्यूचर में स्प्लिट एसी, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी जो आपको दीवार में ड्रिल करना पड़ता है, वो उसकी जरूरत नहीं रहेगी। सिंपली आप लगा दीजिए, जब चाहे फिर स्प्लिट एसी को आप वहां से निकाल के दूसरी जगह लगा दीजिए। तो दैट इज गेको टेप। उन्होंने ऐसे गेको रोबोट भी बना लिया, उन्होंने मुझे चाइना में दिखाया। मैंने चाइना में इसके पैरों को भी छू के देखा, वेरी सॉफ्ट एंड सिल्की, लेकिन इसकी जो ग्रिप पावर है वो इतनी जबरदस्त है। और सोचिए जो इसके जो साइड जो यहाँ पे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे ग्रिप बनाता है, वो 200 नैनोमीटर के। मैंने आपको बताया था कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा होता है। तो इस तरह से गेको से, यानी एक छोटी सी छिपकली से कितनी बड़ी रिसर्च की गई। यहाँ पर आप देखिए कि जो खास बात क्या है, ये हमसे कह रहा है, कमान स्पाइडरमैन, आई चैलेंज यू, कैन यू कम्पीट विद मी। अगर आपको याद होगा, शिवाजी के पास, उनकी सैनिकों के पास गोह नाम का एक रेप्टाइल होता था, जिसको हम आजकल हमारे लखनऊ में भी होती है, मेरे सीडीआरआई कैंपस में बहुत से हैं। तो ये रेप्टाइल करीब 1.5 से 2 फुट लंबा होता है, और इसको शिवाजी के सैनिक ट्रेंड कर देते थे और इसको रस्सी से ऊपर फेंक देते थे किलों के ऊपर। और वहां ये ऊपर जाके इतनी मजबूत पकड़ बनाता था कि मेरे जैसा एक आदमी रस्सी पकड़ के चढ़ जाता था, और रात में चुपचाप वो किले का गेट खोल देता था, और शिवाजी की सेना जो है अटैक करके किला जीत लेती थी। लेकिन उस गोह से हमने नहीं सीखा, लेकिन चाइना ने हमारे ही गेको को लेके इतनी बड़ी सर्च कर दी, जिससे आने वाले समय में चाइना करोड़ों रुपए कमाएगा। और मेरे पास ये गेको टेप है, मैं आपको भी दिखाऊंगा लेक्चर के बाद में। अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक चाइना के साइंटिस्ट ने गिफ्ट किया, लेकिन जब मैंने देखा था चाइना में, तो उन्होंने मोबाइल के पीछे उसको लगा रखा था, और मैं उसको बड़ी कोशिश करी, मैं उसको हिला नहीं पाया। इट इज सो पावरफुल। अब अगर आपके मान लीजिए घर में, आपने देखा होगा इस तरह से जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये बोलते हैं फायर अलार्म्स। जो बड़ी बड़ी नई बिल्डिंग बनती हैं, पिक्चर हॉल बनते हैं, शॉपिंग मॉल बनते हैं, उसमें आपने छतों पर देखा होगा ये फायर अलार्म्स लगे होते हैं। क्यों? अगर आग लगे तो ये सेंस करके अलार्म बजा देंगे, और आपको रात के 3 बजे भी पता लग जाएगा कहीं आग लगी है, और आप तुरंत जो है आग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसकी रेंज कितनी होती है? 10 से 15 फुट। अब मैं आपको एक ऐसे कीड़े से मिला रहा हूं कि अगर कानपुर में आग लगे तो वो कीड़ा लखनऊ में बैठ के जान जाएगा, और वो आपके सामने है। इसका नाम है मेलानोफिला फायर चेजर बीटल। ये छोटा सा कीड़ा, आप सवाल है इसको क्या टेंशन पड़ी है कि भाई कानपुर में आग लगी है? अरे लगा करे कानपुर में, सीतापुर में आग। लेकिन इसका स्वार्थ क्या है कि इस कीड़ों को जली हुई सतह चाहिए अंडे देने के लिए। दैट इज द रीजन इट कीप्स ऑन सर्चिंग, सेंसिंग कि आग कहां लगी। तो साइंटिस्ट ने देखा कि इसके गले में 70 ग्लैंड्स होती है नीचे, विच आर थर्मो सेंसर, जो कहीं भी इंफ्रारेड रेडिएशन को सेंस कर लेती है कि गर्मी है, वहां पे आग लगी है। और इस तरह से साइंटिस्ट अब इससे सीख के ऐसा फायर अलार्म बना रहे हैं कि पूरे लखनऊ के लिए सिर्फ एक लगा दे बहुत है, और उसमें हम बता देंगे उससे डिवाइड करके कि इंदिरा नगर में लगी है, कि अमीनाबाद में लगी है, कि गोमती नगर में लगी है। अब आपको बताएं पानी की समस्या। आपने देखा होगा अभी आजकल पानी की एक बहुत बड़ी क्राइसिस है हमारे सामने।
आपको जान के ताज्जुब होगा कि 200 करोड़ लोग दुनिया के, जिसमें 60 देशों के हैं और भारत उनमें एक है, आज वो पीने के पानी के लिए रोज बेहद जबरदस्त जद्दोजहद करते हैं। कारण क्या है? पानी कम हो रहा है। रीजन क्या है? ग्राउंड वाटर बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, क्योंकि पानी हम निकाल बहुत रहे हैं, उतना नीचे नहीं जा रहा है। लखनऊ में 10 साल में ग्राउंड वाटर लेवल 30 फीट नीचे चला गया। तो आप सोचिए कि बहुत सारे हैंडपंप इसीलिए सूख गए, सबमर्सिबल पंप सूख गए। आने वाले समय में ये आंकड़ा 700 करोड़ के बराबर 2000 तक पहुंच जाएगा, जिनको पीने की पानी की क्राइसिस होगी। मैं आपको बड़ा मजेदार कार्टून दिखा रहा हूं। आपने इस कौवे को बचपन में जरूर अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। एक कौवा प्यासा था। अब ये कौवा बड़ा साइंटिफिक माइंडेड था। पानी की कमी थी तो उसने क्या किया, कंकड़ का लेवल डाल डाल के पानी का लेवल ऊपर कर लिया और इस तरह से पानी पी लिया। लेकिन दूसरा कौवा, इनका बेटा है, वो कॉन्वेंट में पढ़ा था। उसने कहा, अरे पापा, इसमें कई बार जब कंकड़ डालते हैं तो घंटों लगता है, मुझे तो अभी प्यास लगी है। तो वो कोल्ड ड्रिंक वाला स्ट्रा ले आया, जब चाहा डाला, पानी पी लिया, फिर रख दिया किनारे धो के। अब इनका बेटा, उसने कानपुर आईटी से बीटेक किया। तीसरा जो कौवा है, इसने कहा, पापा भी जब खींचते हैं स्ट्रा से तो लंग्स पे चला जाता है, फिर खांसते रहते हैं और कोई पकड़ के वो एम्बुलेंस में भर के भेज देगा हॉस्पिटल, कोरोना हो गया है। तो वो क्या किया, उसने टुल्लू पंप खरीद लाया अमीनाबाद से, और आप देखिए अपने लगा भी रखा है, नहा भी रहा है, पानी पी भी रहा है। दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी आर टुडे। आज हम इसी स्टेज पे हैं जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सारे नेचुरल रिसोर्सेज को। लेकिन जो चौथा कौवा है, पहले वाले का ग्रेट ग्रैंडसन, वो MIT अमेरिका चला गया, PhD करके आया वाटर मैनेजमेंट में, लेकिन बड़ा दुखी था। उसके दोस्त ने कहा, भैया तुम क्यों दुखी, तुम्हारे पापा खानदान के पहले बीटेक, बड़े दादाजी पूरा देश उनको पढ़ता, भले खुद पढ़े लिखे नहीं थे, तुम PhD हो अमेरिका से, तुम्हें क्या दिक्कत है यार, क्यों दुखी हो? तो उसने कहा, यार मैं कौन सी टेक्नोलॉजी लगाऊं जब पानी ही नहीं बचा है। जब पानी नहीं होगा तो कौन सा RO आप लगाओगे, कौन सा एक्वागार्ड लगाओगे? और मैं आपको एक देश के एक शहर का नाम बता देता हूं, केप टाउन इन साउथ अफ्रीका, जहां ये हालत आ चुकी है कि वहां पानी पेट्रोल डीजल की तरह मिल रहा है। एक आदमी को पर डे सिर्फ 50 लीटर पानी अलाउड है, और आप पेट्रोल डीजल की तरह जो है आप उसको यू हैव टू यूज इट। अब क्या है कि ये जो स्टेनोकारा है आपके सामने, ये छोटा सा कीड़ा है, और ये जो कीड़ा है ये कैसे पानी इकट्ठा करता है? ये रहता है साउथ अफ्रीका के पास एक देश में जो नमीबिया है। नमीबिया क्या है, एक ऐसा कंट्री है जो डेजर्ट है, ड्राई डेजर्ट है। अब सवाल है बेचारे को पानी कैसे मिले? तो ये क्या करता है कि ये समुद्र की दिशा में रात में उल्टा खड़ा हो जाता है पूरी रात की। उधर से जो हवाएं आएंगी, वो हवाएं क्या होगा कि उसमें से जो पार्ट्स पर मिलियन पानी की बूंदें होंगी वो इकट्ठा करता है। इसकी बॉडी पे आप छोटे छोटे नॉच देख रहे होंगे। उल्टा इसलिए होता है कि जब वो रिलीज करता है तो एक बूंद पानी जो पूरी रात में वो इकट्ठा कर पाता है, सीधे उसके मुंह में जाए। अब आप सोचिए, एक कीड़े की इतनी मेहनत को MIT के साइंटिस्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने देखा, और उन्होंने ऐसी मशीन बना ली जिससे आप हवा से पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये कीड़ा देखे, कह रहा बेचारा है किसी दोस्त से, यार तुम जा रहे हो किराने की दुकान पे, हैं, पता लगा वहां जाना, तो आप एक काम करना कि आप जो है मेरे लिए भी एक बिस्लेरी की बोतल ले आना, क्योंकि मैं थक गया हूँ रोज उल्टा लटके। अब आपके सामने ये मशीन आपको दिख रही होगी, ये विंड मिल है, और ये जो विंड मिल है ये 1000 लीटर पानी एक दिन में हवा से इकट्ठा कर सकती है एक रेगिस्तान में, डिजर्ट में। तो इसकी आर्टिकल लिखा है मेगन ट्रेसी ने, जिनका फोटो बाएं तरफ है। यस, Excuse me, sir. Sorry for interruption. Your screen is not being shared. Someone अच्छा, else वो has बीच shared. हाँ, Yes. ओके, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ सर, वो किसी और ने गलती से शेयर कर दी थी तो आपकी डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, यही हो रहा है, दैट इज द रीजन। यस, अभी देखिए, जब स्क्रीन पे आ जाए तो हमें बता दीजिएगा। हाँ, आ गया सर। Yes, sir, now it's visible. हाँ, उसको प्रेजेंटेशन मोड में बस कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। अभी आ गया पूरा? नहीं सर, अभी आ रहा है सर। आ गया ना? इट इज देयर? Yes, sir. Should I go yes ahead? sir, yes sir, yes sir. Yes, sir, now it's visible, sir. हाँ? Now it's visible, sir.
हाँ, तो ये जो इसमें आप टरबाइन देख रही हैं, ये टरबाइन जो है ये हवा से एक दिन में 1000 लीटर पानी इकट्ठा कर लेता है, विच इज ए वेरी क्लीन वाटर एंड दैट टू इन द डेजर्ट। तो आप सोचिए कितने टेक्नोलॉजी कहाँ से चली गई है, कहाँ से प्रेरणा मिली, एक छोटे से कीड़े से जो पानी इकट्ठा करता है अपने प्यास बुझाने के लिए। अब मैं आपके घर में शंख जरूर होगा कोई ना कोई, जब शादी ब्याह के टाइम में आपने देखा होगा ना सही, लेकिन आजकल जब पूजा होती है, कथा वगैरह होती है, तो शंख बजाया जाता है। शंख को अगर आप काट दीजिए सेक्शन, तो ये है बिल्कुल जो आपको दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे हवाई जहाज का इंजन है, टरबाइन इंजन है। तो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे। एक तो जो शंख की बॉडी है, देखिए ये कितनी चमकती है, बढ़िया शाइनिंग, लस्ट्रस, स्पार्कलिंग है। और अगर एक लोहे की राड आप समुद्र में फेंक देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, लेकिन उसी में ये शंख कैसे सिर्फ सिलिका से इतना बढ़िया मटेरियल बना लेता है, दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो डिपोजिशन से ही बनाता है, प्रकृति का है ये, इसको पता है कैसे बनाना है। दूसरा क्या है, अभी साइंटिस्ट इस पे काम ही कर रहे थे कि एक उनको नए तरह के शेल मिले, एंड दिस पिक्चर आई टुक इन बार्सिलोना स्पेन, वहां के साइंस म्यूजियम में ये शेल रखे हुए थे। और इसमें आप देखें ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी डिफरेंट देन द ओरिजिनल वन। तो अगर हम नए हवाई जहाज के इंजन या टरबाइन इंजन इस तरह के बनाएं तो कैन वी हैव अ बेटर एफिशिएंसी। तो आप सोचिए, इस पे भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक देखिए, इनका छोटा बेटा है शेल का, शंख का, वो कह रहा है कि डैड अगर वो हमसे सीख के हवाई जहाज के टरबाइन इंजन बनाएंगे तो आप उनसे एक तो प्रॉमिस करा लीजिए कम से कम हमको फ्री में हवाई जहाज से आने जाने का टिकट तो दे दें। अब मैं आता हूँ अपने लास्ट पार्ट में, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट मेक्स यू ए विनर। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा, मैंने वो सारी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा, जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं उन स्कूल में पढ़ा था जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे और जहां पर छप्पर पड़े होते थे जब मैं छोटा था। आई नेवर हैड बीन टू एनी बिग यूनिवर्सिटी, एनी या बिग IIT या कुछ नहीं। अब सवाल था कि वहां से, और ये आगे की यात्रा मैं आपको शेयर करूंगा, ये आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आई विल शेयर यू द रियलिटी। मैं आपको असलियत बताऊंगा क्या दिक्कतें होती हैं और कैसे आप What makes you a winner? तो आप देखिए, अगर आप 1 से 1000 तक गिनतियां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 90, इस पूरे में अप टू 999 ए शब्द कहीं नहीं है, लेकिन वो 1000 में आता है, और जब 1000 में आता है इट बिकम्स बेटर देन 999। तो आप ये मत समझिए कि आप आज हार गए, कल हार गए, परसों हार गए, तो यू कैन नॉट बी ए विनर। नो, कीप ट्राइंग, वन डे यू कैन बिकम 1000, है ना। तो एक तो पहला लेसन। दूसरा मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक बड़ी मजेदार स्टोरी, कि हम अक्सर बोलते नहीं है, वी डोंट स्पीक, और हमें लगता है अरे हम बोलेंगे तो अगला हंसी उड़ाएगा कि अरे क्या बेवकूफी का सवाल पूछ लिया। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये अब्राहम लिंकन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और कैसे ये राष्ट्रपति बने। दाहिने तरफ का उनका चेहरा देखिए, ये उनका चेहरा था जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इनका चेहरा दाहिने वाला आप देखिए, आपको बड़ा इंप्रेसिव नहीं दिखेगा, अजीब सा एक उजाड़ सा चेहरा। तो एक छोटी सी लड़की थी, इसका नाम था ग्रेस बेडल। ग्रेस बेडल जो थी न्यूयॉर्क में रहती थी, और उसने देखा इनका चेहरा तो उसने कहा कि एक चिट्ठी लिखी। अब आप सोचिए, वो छोटी लड़की जो 11 साल की थी, वो एक राष्ट्रपति के कैंडिडेट को चिट्ठी लिखती है और कहती है कि मिस्टर लिंकन आप अच्छे नहीं लगते देखने में, अगर आप दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो आई थिंक जो सारी लेडीज अमेरिका की, दे लाइक बियर्ड, वो आपको पसंद करेंगी, दे विल वोट फॉर यू, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये लेटर जब वहां पहुंचा तो किसी ने कूड़े में फेंक दिया, और जब लिंकन गुजर रहे थे वहां से, उनको वो बॉल कूड़े के कागज की दिखी, तो उन्होंने उठाया, पढ़ा, एंड ही टुक इट वेरी सीरियसली, जेब में रख लिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जब राष्ट्रपति बने तो उनका जो पहला टूर आया, उसमें एक छोटा सा गांव न्यूयॉर्क का, लोग बड़े ताज्जुब में कि राष्ट्रपति कहाँ जा रहे हैं भाई, ये कौन सा गांव है, कभी सुना नहीं, कोई फेमस नहीं, कुछ नहीं। अब अब्राहम लिंकन वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई आई हैव गॉट ए फ्रेंड हियर जिसका नाम है ग्रेस बेडल। अब उसके माँ बाप बैठे थे, उन्होंने कहा भाग लो जल्दी से, नहीं तो अभी तुमसे मैंने मना किया था बेटी कि तुमने क्या बदतमीजी करी है, तुमने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी कि आप देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और वही आदमी राष्ट्रपति हो गया, तो आप तो हमको सबको मानना पक्का है। लेकिन राष्ट्रपति बार बार बोल रहे थे कि ग्रेस बेडल इज माय फ्रेंड, मैं उसी की वजह से राष्ट्रपति बना हूं। जब ये सुना तो रुक गए, और तब फिर लिंकन ने पूरी कहानी बताई। तो ये बच्चों आपसे कहना क्या है, नेवर
बी ए साइलेंट पर्सन। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, इवन इफ यू लव समबडी, ऑलवेज स्पीक, है ना। तो यहाँ पे ग्रेस बेडल है, देखिए वो चिट्ठी है जो अब्राहम लिंकन ने उसको वापस लिखी अक्टूबर 1860 में, और उन्होंने देखा मिस ग्रेस बेडल, माय डियर लिटिल मिस, ये देखिए कितना बढ़िया लेटर लिखा है उन्होंने। और फिर उसके बाद उस गांव में एक ये स्मारक बना हुआ है जहां पे अब्राहम लिंकन के सामने वो छोटी सी लड़की खड़ी है। और इसके बाद वो लिखती है कि मुझे याद है कि राष्ट्रपति एक ट्रेन से आए थे, क्योंकि वहां ट्रेन जाती थी उस गांव में, वो मेरे पास आए थे। ही सैट विद मी ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म में, मेरे साथ बैठे, मुझे किस किया और देन ही लेफ्ट। तो कितनी बढ़िया बात थी, एक छोटी सी लड़की के ओनली द थिंग दैट शी स्पोक, शी कुड टर्न अ पर्सन, जिसके जीतने की संभावनाएं ना के बराबर थी, शी मेड हिम टू बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप सोचो बोलने से कितना बड़ा काम हो सकता है। जब आप कोई नया काम करते हो, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपने कोई अच्छा काम किया, आपको अच्छे नंबर मिल गए, तुरंत सारे दोस्त आपकी टांग खींचने लगते हैं, अरे वाह एक बार नंबर क्या आ गए, दिमाग उड़ रही है बिल्कुल हवा में, है ना। तो कभी भी नेवर लिसन टू द नेगेटिव टॉक्स, नेवर लिसन टू द नेगेटिव कमेंट्स, हैं। आप आगे बढ़िए, डैम केयर अबाउट दैट। अब यहाँ पर एक मेढक की कहानी है। वो मेढक जो था वो बेचारा पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बह रहा था, सुनाई नहीं पड़ता था उसको। तो क्या हुआ कि सारे मेढक चिल्लाने लगे, अरे इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, पागल है, गधा है, उल्लू है। लेकिन वो मेढक चूंकि बह रहा था, उसको लगा ये सारे मुझे जो है मेरा टेम्पो हाई कर रहे हैं, मुझे जो है वो इनकरेज कर रहे हैं, और खुश हो गया और उससे ताकत लगा दी। अल्टीमेटली ही कुड क्लाइंब द ट्री। तो आप देखें नेगेटिव थॉट्स को भी हमें वी हैव टू टैकल देम। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बाएं तरफ 6 लोग हैं, इसमें जो है दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन। आपको पता है 4 साल तक वो बोल ही नहीं पाते थे, तो उनकी मम्मी ने सोच लिया था लड़का ये बेकार निकल गया, किसी लायक नहीं होगा जिंदगी में, जब बोल ही नहीं पाता गूंगा लड़का क्या कर पाएगा। लेकिन देखिए कहां से वो कहां पहुंच गए। दाहिने तरफ टॉप पे आपको दिखेगा जो है माइकल जॉर्डन, इन अमेरिका के टॉप मोस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। ये जब थे हाई स्कूल में तो इनको निकाल दिया गया था, किक्ड आउट फ्रॉम द टीम, हाई स्कूल से इनको निकाल दिया गया था। फिर है वॉल्ट डिज्नी, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, ये सारे कैरेक्टर जो आप देखते हैं, टॉम एंड जेरी, वो किसने बनाए थे? वॉल्ट डिज्नी ने। लेकिन जब ये पहली बार इंटरव्यू देने गए एक मैगजीन में अपने इसी कार्टूनिंग के लिए, तो इसे कहा गया था बेकार है, यू आर यूजलेस, ना कोई इमेजिनेशन है ना आपको कोई आइडिया, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और बेचारे रिजेक्ट कर दिए गए। देन स्टीव जॉब, आप देखिए एप्पल का आईफोन आपको पता है ना, तो स्टीव जॉब को नौकरी से बगैर बताए निकाल दिए गए थे, जिस कंपनी के बाद में वो हेड बने। फिर उसके बाद सबसे नीचे बाएं तरफ एक लेडी आती है, ओपरा विनफ्रे। मैंने इनके बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं अमेरिका में जब मैं रहता था। ओपरा विनफ्रे इज ए वेरी सक्सेसफुल एंकर। जैसे अभी आप देखिए कि कुछ एंकर बहुत फेमस हैं, जैसे सुधीर चौधरी है, अर्नब गोस्वामी है। ऐसे ओपरा विनफ्रे जब गई टीवी में इंटरव्यू देने तो कहा गया ये तो देखने में बकवास लगती है, शी इज नॉट इम्प्रेसिव, और एंकर तो बन ही नहीं सकती, शी इज ए ब्लैक गर्ल, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बट टुडे शी इज द बेस्ट एंकर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका तो छोड़ो, आप पूरी दुनिया में उससे बढ़िया कोई एंकर नहीं है, ओपरा विनफ्रे। और बीटल्स आपने सुना होगा, आज से कई साल पहले बहुत सक्सेसफुल सिंगर थे, और बीटल्स से कहा गया था कि आप लोग किसी लायक नहीं हो, आपको कोई म्यूजिक की ABCD नहीं आती है। और ये दाहिने तरफ मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये मेरी लाइफ से जुड़ा है। मैं हाई स्कूल में क्रिकेट खेलने गया अपने स्कूल में, तो मुझे कहा गया दिमाग खराब है, कभी बल्ला देखा है, कभी बॉल पकड़ी है, गेट आउट, और मुझे इंसल्ट करके उस क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया। आई केम बैक, और मैंने क्या किया, मैंने 6 महीने तक पागलों की तरह क्रिकेट सीखा। और जब 6 महीने बाद मैं फील्ड में गया, मैं अपनी आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं, तो लोगों ने कहा तुम कैसे आ गए यहाँ पे? तो मैंने कहा मैं बॉलिंग करना चाहता हूँ। बोले दिमाग खराब है, कभी बॉल फेंकी है कभी? तो कई लोगों ने कहा अरे यार नया लड़का, एक बार मौका दे दो, 1 ओवर फेंकने का, नहीं तो किनारे कर देंगे। तो मैंने जैसे पहली बॉल फेंकी तो उनको लगा अरे ये तो बहुत अच्छा फेंकता है। दूसरे में बंदा आउट हो गया जो विकेट कीपर था, और इस तरह से 1 महीने के बाद मैं अपनी स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन हो गया। तो आप देखो, रिजेक्ट आप होते हो, नेवर एवर गिव अप, कभी आप हार मत मानिए, हैं, और मेहनत करिए लगन से। और कई बार आप याद रखिए, आपको रिजेक्ट होना ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी हो जाती है। इफ यू आर रिजेक्टेड देन यू बिकम सक्सेसफुल पर्सन। अब मैं आपको ये कहानी सुनाता हूं, ये बहुत आपको इंस्पायर करेगी। ये स्टारफिश की कहानी है,
और ये वो अक्सर होता ना कि अरे हम अकेले क्या कर लेंगे, मैं तो एक लड़की हूँ, महिला में पढ़ती हूँ छोटे से स्कूल में, अमेरिका जर्मनी कितने बड़े बड़े देश हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल है, वहां पे आईटीज है, मैं क्या कर लूंगी। तो कभी भी दिमाग में याद रखिएगा, अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। तो ये कहानी है स्टारफिश की। और अमेरिका के एक बीच में जो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था, ज्वार भाटा आपने सुना होगा ना, समुद्र में जब लहरें ऊपर आती हैं तो उस ज्वार के साथ साथ क्या होता है कि पानी ऊपर आ जाता है, तो 1 लाख स्टारफिश समुद्री किनारे बीच पे आ गई और वो वापस नहीं जा पाई। तो उम्मीद थी कि वो शायद खत्म हो जाएंगी शाम तक, क्योंकि बहुत गर्मी होती बीच पे, आपने देखा होगा। तो वहां से एक अकेला आदमी गुजर रहा था, उसने सीन देखा 1 लाख स्टारफिश, वो एक आदमी। तो उसने क्या किया कि चलो मैं कुछ तो करता हूं, तो उसने 2 स्टारफिश को उठाया और ले जाके 1 फरलांग दूर वो डालाया समुद्र में, फिर आया, फिर डालाया 2 को, फिर 4। अभी ये काम कर ही रहा था कि एक अमेरिकन आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था ऊपर से। उसने जब देखा, पायलट और को पायलट थे, तो पायलट ने कहा नीचे क्या हो रहा है यार, चलो नीचे चलते हैं। तो हेलीकॉप्टर बता रहा, तो को पायलट को भेजा कि पता करो ये आदमी क्या कर रहा है। तो वो को पायलट गया, उस आदमी से पूछा भाई आप क्या कर रहे हो। तो बोले देख नहीं रहे आप, ये स्टारफिश हैं, लगभग 1 लाख होंगी, ये सब मर जाएंगी शाम तक, सो आई एम ट्राइंग टू सेव देम। तो उसने कहा यार तुम अकेले कहां इनको बचा पाओगे भैया, ये 1 लाख हैं, यू आर ओनली 1। आप इस तरह से दुनिया थोड़ी आप बदल सकते हो अकेले। तो उस आदमी ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। वो सुनिएगा जवाब क्या था। उसने कहा कि जब मैं 2 स्टारफिश को उठाता हूं और इनको ले जाकर मैं जब समुद्र में डालता हूं, तो मुझे लगता है मैं दुनिया तो नहीं बदल रहा हूं, लेकिन इन 2 स्टारफिश की दुनिया तो बदल रहा हूं, एंड दैट मेक्स मी गोइंग। और वो बात बड़ी अच्छी लगी को पायलट ने पायलट को बताया। पायलट ने कहा तुम यहीं रुको। अब 2 लोग हो गए, वो 2 उठा रहे हैं, जा रहे हैं, समुद्र में डाल रहे हैं। पायलट गया शहर में 30 किलोमीटर दूर, वहां के एफएम रेडियो पे, वहां के टेलीविजन पे उसने अनाउंस किया कि 30 किलोमीटर दूर एक बीच पे 1 लाख स्टारफिश आ गई हैं, दे में डाई, उनको बचाना अगर है तो आई पील यू ऑल। और क्या हुआ कि मुश्किल से आधे घंटे में वहां लगभग 50,000 लोग पहुंच गए। कितनी स्टारफिश थी? 1 लाख। तो अगर एक आदमी ने 2 उठा ली, तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सारी स्टारफिश बच गई, क्योंकि 50,000 लोगों ने 2 स्टारफिश उठाई, समुद्र में जाके छोड़ दिया। सो एक पहले आदमी के ये सारा काम संभव क्यों हुआ? उस पहले आदमी की वजह से, हु हैज अ पॉजिटिव थिंकिंग, और जिसको लगा था कि मैं जो कर सकता हूं, लेट मी ट्राई माई बेस्ट। तो ये जो कहानी सुना रहा था, मैंने पूछा यार ये कहानी तो है, लेकिन व्हाट इज द प्रूफ इट इज अ ट्रू स्टोरी। तो वो जो मेरा दोस्त था उसने कहा आई एम द पायलट। वो मेरा दोस्त है, उसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। हिज नेम इज मारियो गार्सिया जूनियर। अमेरिकन आर्मी में एयरफोर्स का की तरह जैसे हमारे यहाँ एयरफोर्स में हवाई जहाज हेलीकॉप्टर होते हैं, अमेरिकन आर्मी में भी उनका एविएशन विंग होता है। सो ही वाज ओवर देयर। अब मैंने ये 2 किताबें लिखी हैं, तीसरी अभी लॉन्च होने वाली है अगले हफ्ते। और इंडिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर लालजी सिंह। राजीव गांधी मर्डर केस, नैना सानी मर्डर केस, जितने भी डीएनए टेस्ट होते हैं, चाहे वो सुशांत मर्डर केस हो या सुशांत डेथ हो, तो ये सारे डीएनए से जो सॉल्व होते हैं, उनकी जो साइंस थी वो ये दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर लालजी सिंह जो बीएचयू के वाइस चांसलर भी थे, ही वाज डायरेक्टर सीसीएमबी हैदराबाद। नैना सानी मर्डर केस भी सॉल्व किया था इन्होंने। तो एक बार मैं जब हैदराबाद उनके इंस्टीट्यूट में गया तो मैंने एक लेक्चर दिया। द टॉपिक वाज सेफ्टी इन लैब्स, यानी लैब में आप जब काम करेंगे तो क्या सेफ्टी लेंगे। डॉक्टर लालजी सिंह बहुत हंसे मेरे लेक्चर पे। एवरी स्लाइड वाज मेकिंग हिम टू लाफ एंड लाफ, दो ही वाज अ वेरी सीरियस पर्सन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप यू हेल्प मी, और मैं डीएनए पे कुछ चाहता हूं कि कैन यू मेक माय लेक्चर, क्योंकि मैं जब आईपीएस ऑफिसर्स को और जब मैं जजेस को लेक्चर देता हूं तो लेक्चर बिकम्स वेरी बोरिंग। तो मैंने उनके साथ 2 साल काम किया एंड आई कन्वर्टेड हिज लाइफ टाइम वर्क इनटू कार्टून साइंटून्स। और इस तरह से दुनिया की पहली किताब आई। यू कैन बाई, अमेजोन पे अवेलेबल है, amazon.com पे .in जो इंडिया में है, साइंटूनिक टेल ऑफ जीनोम एंड डीएनए। तो ये पूरा डीएनए की कहानी बताती है थ्रू साइंटून्स, जो आप एक चीज समझ सकते हैं कि डीएनए क्या होता है, कैसे क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, कैसे डीएनए टेस्ट होता है, वगैरह वगैरह। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इतनी मेहनत के बाद, देखिए मेरे पास, मैं आपको जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे 50% अवार्ड्स गिफ्ट है, सुविनियर्स हैं जो पूरी दुनिया से मुझे, ओनली 50% आई एम शोइंग यू। 50% आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने है, ये वो कड़ी मेहनत का नतीजा है विच आई डिड। और चूंकि मुझ में एक पैशन क्या था, एक जुनून होना चाहिए, और जुनून इसलिए था कि मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे थे इंडिया में, एंड आई थॉट लेट मी प्रूव, लेट मी से टू द वर्ल्ड आई हैव डन समथिंग वेरी गुड।
और मैंने जो काम किया है वो सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। एंड उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं पूरे भारत में, मतलब भारत के 50 एयरपोर्ट में टच कर चुका हूं। मैंने स्कूटर से भी जाके लेक्चर दिए, मोटरसाइकिल से भी दिया है, कार से भी दिया है, बस से भी दिया है, ट्रेन से दिया है, फ्लाइट से दिया है, हेलीकॉप्टर से जाके मैंने लेक्चर दिया है। तो मैं पूरी दुनिया घूमने लगा और एक जुनून में, और जुनून में क्या था, रिजेक्शन। हमेशा लोग जो मेरे काम की बुराई करते थे, दे बिकेम एक्चुअली वेरी गुड इनकरेजर फॉर मी, दे बिकेम वेरी गुड मोटिवेटर फॉर मी। तो आप याद रखें, जब भी आपको लोग डिस्करेज करते हैं, आपको डिप्रेस करते हैं, तो टेक इट पॉजिटिवली एंड प्रूव यू आर द बेस्ट, और इस तरह से आप कर सकते हैं। ये वो पुरस्कार है जो मुझे मिला, और ये जो पुरस्कार है आपके सामने है, द आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। मैं इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो आपको इंस्पायर भी करेगा। आई विल फिनिश इन 5 मिनट्स। स्टोरी ये थी कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला पहले केरल में, मेरे साथ पीटी उषा, पंकज दास, सुधा चंद्रन, और पता लगा यही पुरस्कार पहले सुनील गावस्कर को मिला है, रवि शास्त्री को मिला है। आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन। मैंने पीटी उषा को, पंकज दास को कभी देखा नहीं था फेस टू फेस, पहली बार मैं उनसे मिल रहा था, मैं उनके ऑटोग्राफ मैंने लिए, उनके फोटो लिए, एंड आई वाज हैप्पीएस्ट मैन कि मैं उनको देख पा रहा हूँ। एंड आई फाउंड कि ये सारे, पीटी उषा वाज सो नाइस, सो हम्बल, सो अफेक्शनेट। पंकज दास इतने अच्छे से बात करते, मुझे लग ही नहीं रहा था ये वही सेलिब्रिटीज हैं विच कम ऑन टेलीविजन। लेकिन थोड़ी देर, आधे घंटे बाद मैंने रियलाइज किया कि भाई 10 लोगों को जो आज अवार्ड मिला उसमें एक तो मैं भी हूं, लेकिन मेरा किसी ने ना तो ऑटोग्राफ लिया, ना मुझसे कोई बात करी, और ना मुझको मेरा फोटो खींचा। तो क्या हुआ, मुझे थोड़ी देर बाद बड़ा दुखी हो गया मैं। और जब होता है ना हमेशा जिंदगी में, जब आपको इस तरह की कोई घटना होती है, यू बिकम सैड, यू बिकम डिप्रेस, यू बिकम, मूड आपका ऑफ हो जाता है। व्हाई? बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट गॉड्स। तो अब मैं, लेकिन जब मैं वापस आया लखनऊ, तो थोड़े दिन बाद मैं नॉर्मल हो गया, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने किया ही क्या है कि कोई मेरा ऑटोग्राफ ले। आई डोंट डिजर्व फॉर दैट, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। और उस जुनून ने मुझे वो करने पे मजबूर कर दिया कि मैंने पूरी जिंदगी के अपने टाइम लगा दिए, 24 घंटे, मतलब कि मैं साइंटून्स को कैसे दुनिया में प्रसिद्ध करूं। 1 साल के अंदर हम लोगों को नॉमिनेशन अमेरिका हो गया, 1240 नाम आए थे पूरी दुनिया से, और उसमें से क्या हुआ कि 10 लोगों को सिर्फ सिलेक्ट होना था। और मुझे जहां, मतलब जब खबर मिली तो मैं चेन्नई में था, और ये जो पुरस्कार मिला मैं भारत से अकेला था। और जब मैं अमेरिका में पहुंचा तो ना तो पीटी उषा को ये मिल पाया, ना सुनील गावस्कर को, ना रवि शास्त्री को, ना पंकज दास को। कैन यू बिलीव अ पर्सन लाइक मी कुड विन दिस अवार्ड? और कितना बड़ा क्षण था मेरे लिए जब मैं अमेरिका में पूरे भारत की तरफ से अकेला खड़ा हुआ था। और ये जब मुझे ये ट्रॉफी मिली, ये 7 किलो प्योर चांदी और सोने की ट्रॉफी है, और ये इसका अवार्ड आप देख ही रहे हैं, इसका नाम। और उस रात मैंने 2.5 घंटे ऑटोग्राफ दिए 124 देशों के सैकड़ों लोगों को। एंड ये इसलिए संभव हो पाया कि मैंने अपनी हार को हार नहीं माना, आई नेवर गेव अप। तो ये वो देखिए उसका क्लोजअप है इस अवार्ड का आपके सामने। और ये अवार्ड पहले मिल चुका है जिनको, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हैं, रिचर्ड निक्सन है, अमेरिका के विदेश मंत्री डॉक्टर हेनरी किसिंजर हैं, अगर आपने जैकी चैन की फिल्म देखी होगी ही इज द, तो ये लोग हैं जिनको ये पहले पुरस्कार मिला है मुझसे पहले। लेकिन इस आपको सोचिए कितना मुश्किल था कि 1240 लोगों में दुनिया के 10 में से आप जगह बना पाए, और इट वाज समथिंग वेरी वेरी यूनिक, यू नो समथिंग। अब जब आप जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं तो आपको मजा भी आता है। आई कीप ऑन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द कंट्री, देखिए मैं कौन कौन लोगों से मिलता रहता हूँ। और ये बड़ा क्षण था, मजेदार क्षण था जब मैं मीका से मिला जो सिंगर हैं, तो मैं सेल्फी लेना चाह रहा था। मीका ने कहा, नो यू वेरी वेल, आई हैव सीन यू ऑन टेलीविजन, मैं आपके साथ सेल्फी लेता हूँ। दैट वाज द ग्रेट मोमेंट फॉर मी। ये कियारा आडवाणी है जो MS धोनी फिल्म आई थी सुशांत राजपूत की, जिसमें वो हीरो थे, तो ये साक्षी बनी थी। अभी हम लोग बॉम्बे में एक प्रोग्राम कर रहे थे, वी वर वर्किंग टुगेदर, करीब 3000 बच्चे थे बॉम्बे के जिनके साथ हम काम कर रहे थे। ये मेरे एक अच्छे फैन है और मैं इनका फैन हूँ, आप इनको पहचान गए होंगे। मैं दिल्ली में बैठा हुआ था VIP लाउंज में T3 एयरपोर्ट के, क्योंकि मेरे दोस्त का बेटा वहां काम करता था, तो आई एम नॉट ए VIP, लेकिन दोस्त के बेटे ने कहा अंकल आइए आपको VIP लाउंज ले चलते हैं। सो आई मेट रणबीर कपूर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा फेस टू फेस रणबीर को देखना, आई एम हिज ग्रेट फैन। तो रणबीर को जब पता लगा आई एम ए साइंटिस्ट, तो रणबीर कभी किसी साइंटिस्ट से नहीं मिले थे, सो ही रियली एंजॉयड। बोले तो हमने कहा रणबीर आई हैव गॉट ए हॉबी, आई कैन मेक कार्टून्स। कहते कितना टाइम लगता है? मैंने कहा कि 1 मिनट। कहता हाउ कम? हमने कहा अच्छा भी आपको बना के देते हैं, अब कोई कागज नहीं वहां पे। तो आई मेड एक स्मॉल कार्टून द बैक ऑफ माई विजिटिंग कार्ड। वो जो कार्टून है
वही मैंने नेल्सन मंडेला को, डॉक्टर कलाम को प्रेजेंट किया था। तो ये जो कार्टून जब दिया तो रणबीर वॉज वेरी हैप्पी। बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा गोइंग टू IIT रोपड़ पंजाब फॉर गिविंग ए लेक्चर। तो बोले आप जब वहां लेक्चर देना तो सबसे बोल देना कि रणबीर ने सबको हेलो कहा है, और कल मेरी पिक्चर लॉन्च हो रही है बर्फी। तो ये 2012 की बात है, और मैंने वहां जब अनाउंस किया तो सारे लोग आए, देन बर्फी बिकेम बिग हिट। तो फिर मैं दोबारा जब रणबीर से एक बार मिला बॉम्बे एयरपोर्ट पे, तो रणबीर को मैंने बताया तो उनको याद नहीं था मेरे बारे में बिल्कुल, लेकिन जब मैंने कहा मैंने आपको एक कार्टून बना के दिया था, तो अरे ही जम्प्ड एंड पर्स से निकाल कर मुझे दिखाया, यस इट इज देयर विद मी। तो जिंदगी में सफलता जो लोगों को मिलती है, अब्दुल कलाम साहब ने, हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था यू आर सक्सेसफुल इफ योर सिग्नेचर बिकम्स योर ऑटोग्राफ। तो ये क्षण था मेरे लिए, बड़ा अनोखा क्षण है। मैं ऑटोग्राफ दे रहा हूँ एक लड़की को जो बोकारो स्टील सिटी से दिल्ली आई थी अपने हाथ पे सिर्फ मेरा ऑटोग्राफ लेने। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक बच्चा जो एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता है, जिसको बोलना नहीं आता है, और उसके टीचर उसको सिखाते हैं हाउ यू कैन बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर, हाउ यू कैन स्पीक द बेस्ट, और वो बच्चा जो कभी एक शब्द नहीं बोल पाता था, वो बच्चा पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए जाता है बिकॉज ऑफ द वे ही स्पीक्स, बिकॉज ऑफ द लेक्चर ही डिलीवर्स। और बच्चा आपके सामने आज बड़ा सा बैठा हुआ है। और अंत में सब इस कहानी से मैं एंड करूंगा, जिंदगी में कभी आपको नेवर एवर गिव अप याद रखना चाहिए, कभी आप हार मत मानिए। अच्छा, मैं एक साइंटिस्ट हूं तो आपको बताना चाहूंगा कि हम सब में जितने भी दुनिया के आदमी हैं उनका 99.9% डीएनए सेम है। डीएनए क्या है? डीएनए हमारे जीन्स बनाते हैं, और हमारे जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि हमारा रंग कैसा है, हमारे बालों का रंग कैसा है, हमें कोरोना होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो हम बचें कि नहीं। दैट इज ऑल गवर्न बाय जीन्स। तो अगर 99.9% डीएनए सेम है सारी दुनिया के लोगों का, दैट मीन्स वी हैव एवरी एबिलिटी टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर 0.1% क्या है जिसमें हम बड़े नहीं बन पाते हैं, हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं, हम वो सेलिब्रिटी नहीं बन पाते हैं। 0.1% में कई चीजें हैं। पहली चीज, आपको बहुत हार्ड वर्क करना आना चाहिए। दूसरी चीज, यू मस्ट हैव एन एटीट्यूड नेवर एवर गिव अप, कभी जिंदगी में हार मत मानिएगा। तीसरा है, यू मस्ट बी वेरी सिंसियर, वेरी सिंसियरली कमिटेड टू योर वर्क। अगर ये 0.1% में 3-4 चीजें आप याद रखेंगे, और जिसमें सबसे बड़ी चीज है कभी हार नहीं मानने की, तो आप जिंदगी में एक दिन सक्सेसफुल होंगे। मैंने हार नहीं मानी, इसलिए मैं अमेरिका पहुंच गया उस पुरस्कार को लेने के लिए। और यहाँ पर ये घटना बड़ी मजेदार है कि जब मैंने साइंटोनिक्स कॉइन किया साउथ अफ्रीका में, तो उस दिन शाम को एक बीच पार्टी थी समुद्र किनारे, और ये 3 लोग आप दिख रहे हैं मेरे बगल में, ये तीनों ड्रमर हैं, ड्रम बजाते हैं अफ्रीका के। जैसे ही इन्होंने मैंने देखा, मेरे लेक्चर में भी थे, तो दे वर वेरी हैप्पी थे, ओ प्रदीप द मैन फ्रॉम इंडिया, कम ऑन। अब उनको लगा हर इंडियन जो है बड़ा भारी बिस्मिल्लाह खां और अमजद अली खां से कम नहीं होता है। सो दे आस्क्ड मी कम ऑन लेट्स प्ले द ड्रम। अब मुझे बड़ी हालत खराब, मैंने तो अफ्रीकन ड्रम देखे नहीं थे, इतने वो 3-3 फीट ऊंचे, 4-4 फीट ऊंचे ड्रम मैंने बजाना तो दूर। फिर मैंने कहा मैं दुनिया को शिक्षा देता हूँ कि 99.9% डीएनए सेम है। तो मैंने सोचा मेरे पापा, ही वॉज ए वेरी गुड म्यूजिकल सिंगर, वो वोकल सिंगर थे बड़े अच्छे क्लासिकल म्यूजिक के, वो इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे, हारमोनियम, तबला, ढोलक, बैंजो, वायलिन। तो मैंने सोचा कुछ जीन्स उनके मेरे में होने चाहिए। और तीसरी चीज, यू शुड नेवर गिव अप। तो मैंने कहा हार नहीं माननी है, तो आई जॉइंड विद देम और मैंने ड्रम बजाना शुरू किया। व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग ड्रम, मैं बड़ा अच्छे से बजाया मैंने, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। अगले दिन क्या हुआ, दे अनाउंस द बीच पार्टी अवार्ड। उन्होंने कहा कि 10 अवार्ड है, और पहला अवार्ड है बेस्ट गिफ्ट पर्सन का, तो किसी अमेरिकन को मिल गया। बेस्ट ड्रेस कपल किसी जर्मन कपल को मिल गया, बेस्ट ड्रेस गर्ल किसी लैटिन अमेरिकन लड़की को मिल गया। अब ये था कि जो मेरा अगला क्या था कि ओवरऑल बीच पार्टी अवार्ड हो गए, और मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला। मेरे एक इंडियन दोस्त को बेस्ट डांसर का अवार्ड मिल गया। तो आपने 3 इडियट देखी होगी ना, अपने दोस्त को जब मिलता है ना तो ज्यादा खलती है, वही हालत मेरी हो गई। But then they announced the overall beach party award and that goes to, और जब उसके बाद मैंने सोचा अब मुझे नहीं मिलना है, but I have done my best, I have tried my best। मैंने चुपचाप मैंने सोचा ठीक है, let us accept the reality। लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा the award goes to the man from India and his name is Pradeep। और वो अवार्ड क्या था? एक अफ्रीकन ड्रम जो आपके सामने है। So I think I gave you an example। तो इस
तरह से I think I am very thankful to Dr. Nisha Gupta, Honorable Principal of the college, Mahila Degree College, for inviting me, Dr. Pragya Sharma for giving me the opportunity, Dr. Kusia Bano for introducing me, and all the respected teachers who are listening to me. और जो सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, I'm very grateful to each one of you. और इसके बाद आपको कोई सवाल पूछना है, I'll be very happy to answer you. और बहुत बहुत स्वागत है आपका. You became a witness to my 1347th invited lecture. Thank you so much. Thank you, sir. Kutsiadi? Thank you, sir, for your wonderful presentation. I am sure Thank you. that all the participants have enjoyed. Your mic. Mic is on? Yeah. Okay, fine. I can hear you. Yes. Continue, Kutsia ma'am. Please. Kutsia ma'am, you are mute. Okay, Your mic okay. is muted. Please. Thank you, sir, for your wonderful presentation. I am sure that all the participants have enjoyed your presentation and have understood that a picture through cartoon is worth 1,000 words. Now I invite Dr. Pragya, Assistant Professor, Department of Chemistry. Over to you, Pragya. Thank you, ma'am. Sir, I have few words for you. I'm sharing chat box during your session. Please look at this, sir. कि हम सब जगे हुए थे. Thank you. सर, मैंने सोचा मैं इसी से शुरू करूं. This one is your student, sir, Lalit Prakash Gupta. They have shared their experience. Oh. Thank you, Lalit Prakash Gupta, for your kind words. So nice of you. Now, look at this. Their timing, sir, 11, 17, 24. They सब जगे हुए थे, सो नहीं रहे. And K. Sudhakar, Rashi Sahu, thanks, so nice of you. Unnati Singh, thank you so much. And Vana Malai, Srinivas, great. So nice of you for all your kind words. I think these words of appreciation will keep on encouraging me. और एक बच्चों आपसे सबसे लास्ट में कहना है कि आप कितना भी ऊपर आप जाओ, but be humble, be practical. और आप उन लोगों को मत भूलना जो आपके साथ कभी छोटे टाइम में वो लोग थे जो आप जैसा बड़ा नहीं बन पाए. Always be in touch with them, है ना. कभी भी जो है आप उनसे दूर मत रहिएगा. और आप एक ध्यान रखिएगा, हमेशा पतंग हवा में तभी तक ऊपर जाती है जब तक वो जमीन से जुड़ी होती है. सो कितना भी आप जिंदगी में तरक्की करो, कितने भी आपको सफलताएं मिले, बट रिमेन हम्बल, नेवर फॉरगेट योर ओल्ड फ्रेंड्स, नेवर फॉरगेट योर ओन पीपल. और इसलिए मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ बिकॉज आई कीप ईगो वन साइड. और कई बार बड़ा मजा आता है जब मैं बाजार जाता हूँ, कई बार ऐसे लोगों से मिलता हूँ. एक बार मैं एक सब्जी वाले के साथ बात कर रहा था, तो वो हंस रहा है, कह रहा सर आपके तो फोटो आज पेपर में निकली थी, मैंने पढ़ा था, दिखाया उसने, और मैं उसके साथ जमीन में बैठा हुआ बात कर रहा था. तो एंजॉय द लाइफ, आप कितना भी अचीव करें बट रिमेन हम्बल. और वही हम्बलनेस आपको आगे हमेशा ले जाएगी. रिस्पेक्ट योर टीचर्स बिकॉज दे कैन मेक यू वंडरफुल पर्सन, अमेजिंग पर्सन. मेरे टीचर अगर ना होते तो मैं आज आपके सामने शायद यहाँ बोलने के लिए खड़ा ही ना होता, तो बोल ही नहीं पाता था. थैंक यू प्रज्ञा. Anything else? Any question? Yes, sir. Yes, sir. हमने फीडबैक में आपके लिए कुछ वर्ड्स मांगे थे, ये सब तो चैट बॉक्स में थे. तो देखिए सर, few words for presenter करके हमने कहा था. तो these are the words they want to tell you. अच्छा. सर आप इसको एक बार देख लीजिए तो सबको लगेगा कि हमने आपसे कम्युनिकेट किया है इसको, और बाकी को भी. Yes. I think thank you so much. The kind words, you have written, Dr. Pragya. I think so nice of you. Thank you so much. I'm so humbled. Mine words. Sir, these are not mine words. These are from the participants. Okay, great. Thank you so much. But compile it in one page, and I think I'll be happy if you send me these lines. They'll definitely, sir. Definitely, I'll send you. Thank you, sir. Kutsia ma'am, now you can continue. Any question is there, I'll be more than happy to answer. And I think one lesson each one must learn from me,
यू मस्ट बी ए वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अगर आप बढ़िया बोल नहीं सकते हैं तो शायद जिंदगी में आपको सफलताएं नहीं मिलेंगी। और मेरे टीचर ने मेरी यही कमी पकड़ी थी कि आई वॉज वेरी पुअरेस्ट कम्युनिकेटर। मैं टॉपर था यूनिवर्सिटी का, लेकिन मुझे एक शब्द नहीं मुंह से निकल पाता था इफ द क्वेश्चन वाज आस्क्ड। और इस कमी को उन्होंने पकड़ा, मुझे समझाया, एंड देन ही कन्वर्टेड मी फ्रॉम वेरी डल पर्सन जो बिल्कुल बोल नहीं पाता था, नाउ कि आप 1340 लेक्चर पूरी दुनिया में आप देते हैं। और बड़ा मजा आता है व्हेन आई टॉक टू। आज सुबह पता लगा 10 बजे बच्चों से लेक्चर है, 2 घंटे बाद आई एम टॉकिंग IT, शाम को मैं IFS प्रोफेशनल्स को लेक्चर दे रहा हूँ, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, और रात में पता लगा आई एम टॉकिंग टू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस इज हाउ यू कैन, इफ यू आर इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यू कैन मेक अ बिग चेंज, और वो आपको जिंदगी में हमेशा मदद करेगा। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, एंड आई थिंक यू आर लकी, आप तो इतने अच्छे स्कूल में हो, महिला और मे बी सम अदर स्कूल्स। मैं तो काश इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता था, आई कुड हैव डन समथिंग मोर। Lot of thanks, sir and Dr. Pragya. Now I welcome Dr. Deepti Singh, Associate Professor and Head, Department of Mathematics, Mahila Vidyalaya Degree College, Lucknow, for vote of thanks and to conclude this event. Over to Dr. Deepti Singh. Am I audible? Yes. Yes, you are audible, Dr. Deepti Singh. Thank you, Dr. Kutsia Bano. That was really a very interesting session indeed. On behalf of entire Mahila Vidyalaya Degree College, I would like to express my sincere gratitude to our distinguished guest, Dr. Pradeep Kumar Shrivastava ji, for his valuable viewpoint and words of wisdom. The interesting manner in which Dr. Shrivastava explained scientific facts with the help of cartoons has been actually a visible treat for students and faculty alike. Today's session by our esteemed guest endorsed the fact that the scientific theories, when explained with the help of cartoons, can catch the attention of not only students but also of common people. Thank you, sir, once again for acquainting us with this innovative approach towards science. I am also thankful to our respected principal, Mrs. Nisha Gupta, for her constant support, motivation, and cooperation. I am also grateful to all faculty members from various institutions across the country for gracing the session. I would also appreciate my students for their presence and attention throughout the session. Last but not the least, I would like to thank Mr. Arun Verma for his support in implementation of today's lecture. Thank you, one and all. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Actually, everyone was very satisfied. So we have very few questions for you. They all were saying it's extraordinary. Is there anyone who want to ask something? Ask them to mute their unmute their mic. You know, most of the mics are mute. So if they want to ask, first they have to unmute the mic. Dear participant, now you can unmute your mic and ask your questions to sir. Questions, queries, whatever you want to ask. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। Yes. सर अब हमें आपकी बुक्स के बारे में, हेलो सर, May I know your name? सर Niharika Verma. It's Niharika Verma from BSc third year. Okay. सर आपकी बुक्स के बारे में जानना है, कौन कौन सी बुक्स आपने लिखी हैं अभी तक? अभी DNA पे लिखी है तो Amazon पे आपको मिल सकती है, यू कैन बाय इट। और कोरोना वाली बुक अगले हफ्ते लॉन्च हो रही है। और तीसरी बुक जिसमें मैंने सिर्फ कार्टून्स बनाए थे, वो जो तीसरी बुक मैंने अभी दिखाई थी लेक्चर में डॉक्टर लालजी सिंह के साथ,
So I've written 3 books, बाकी 5-6 बुक और लिख रहा हूँ on nanotechnology, on biosphere engineering, on DNA technology and medical science. तो ये और एक अब बुक आ रही है जो मेरी अपनी बायोग्राफी है, कि मतलब मेरा अपना जीवन कैसे आपको इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत पुअर बैकग्राउंड से था. मेरे फादर ही वाज सिंपल स्कूल टीचर जो स्कूल में पढ़ाते थे. आई हैड अ वेरी टफ टाइम एज द बिगिनर, और इकोनॉमिक क्राइसिस देखना, छोटे शहर से होना, और बड़े कोई आईटी जैसे बैकग्राउंड या कॉन्वेंट जैसे बैकग्राउंड में ना होने से इट वाज नॉट इजी फॉर मी टू रीच टू द लेवल व्हिच आई रीच्ड. लेकिन वो अगर मैं पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं. यू कैन इवन डू बेटर देन व्हाट आई हैड डन. मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी इस लेवल पे आने के लिए. सो आई थिंक इफ यू डू दैट यू कैन डू वंडर्स. तो वो किताब भी एक लिख रहा हूँ अपने जीवन की पूरी यात्रा के बारे में, कि फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ पे ट्यूशन नहीं मिलता पढ़ाने के लिए कि 30 रुपए का, कि कैसे अप्लाई, इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी करना है तो पैसे चाहिए आपको. सो 30 रुपए का ट्यूशन भी एक टाइम था. आई यूज्ड टू स्ट्रगल, वो भी एक टाइम था. बट वेरी हैप्पी टुडे वेयर आई एम. आई कीप ऑन इंस्पायरिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया. और मैं दुनिया के, अभी बार्सिलोना स्पेन में गया था. कैन यू बिलीव आई वाज द इनॉग्रेटल स्पीकर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड माय टॉपिक वाज बायो इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग. माय टाइम स्लॉट वाज 3 आवर्स, जबकि अमेरिकन और यूरोपियंस को भी 45 मिनट से ज्यादा बोलने का टाइम नहीं दिया गया था. सो आई फील हैप्पी आई एम फ्रॉम इंडिया, एंड दैट वे व्हेन आई स्पीक इट इज द इंडिया हु इज देयर. If I am giving honor, that means India gets honor. So I never get proud or never get very excited. I always think it's the people, it's the country, it's my good behavior, that is getting the honor award. I keep always attached to the ground, remain humble, and whatever I achieve in the day, by night I give it back to the God and tell him that it is because of you what I got today. I think, thank you. सर, एक पार्टिसिपेंट ज्योति पाटिल, इसका है हाउ टू फोकस्ड ऑन कंसंट्रेशन, इंक्रीज ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन. Yeah, can you repeat the question? How to be focused and concentration increased on research and innovation. बहुत सिंपल है. अगर आपको किसी भी एरिया में काम करना है, नॉट ओनली रिसर्च और इनोवेशन, इन्वॉल्व दैट फुल्ली, सिंसियरली, कमिट टू दैट. आप बिल्कुल उसमें जी जान से आप लग जाओ, हैं, और वही एक मंत्र है आपको टू बिकम ए विनर. कई बार हो सकता है, एक बार मुझसे अमेरिका में सवाल पूछा गया था जब अवार्ड सेरेमनी में, कि आप अकेले इंडिया से सेलेक्ट हुए, आपके साथ बहुत से लोग इंडिया में 10 लोगों में से थे, बड़े बड़े नाम, व्हाई यू आर हियर. तो मैंने कहा बस एक ही बात से मैं यहाँ पे हूँ कि मैंने कभी हार नहीं मानी थी. आई नेवर एवर गिव अप. तो एक ही है कि अगर आपको है बी इन्वॉल्व, आप पूरी सिंसियरिटी से, पूरे कमिटमेंट से स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. लोगों से मिलो, आप लोगों से गाइडेंस लो. हो सकता है कभी आप किसी के मिलने पा जाओ, आपको झिड़क दे, आपको रिजेक्ट कर दे. टाइम किया है 10 लोगों में से अगर आपको 9 लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, आई डोंट माइंड, लेकिन 10वां अगर मुझे हेल्प करके कुछ नया देता है तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम. तो जिंदगी में आप अच्छे लोगों से मिलोगे, बढ़िया लोगों से मिलोगे. कुछ खराब भी हो सकते हैं. लर्न ऑलवेज लेसन फ्रॉम बैड पीपल कि आपको क्या नहीं करना है, and always learn from the great people कि आप क्या बढ़िया कर सकते हो. I think if you do that, you can be successful any line. मानसी चौधरी, please unmute yourself. Yes. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all organizer. Sir, first of all, I would like to thank you for giving such a wonderful insight. I mean, I am really short of words to explain what you actually told us today. Sir, Thank you so much. I'm thankful to the bottom of my heart. I'm really feeling, and I'm sure all the participants are also feeling the same. Sir, I'm Dr. Mansi Chaudhary from University of Delhi, Department of Chemistry, Rajdhani College. Sir, I teach inorganic chemistry over there. तो सर मैं ना कॉलेज के माध्यम से मैं NSS की मेंबर हूँ. इसके अलावा हम लोगों की एक सोसाइटी है, केमफिलिक्स सोसाइटी, मैं उसकी भी एक मेंबर हूँ. तो सर ऑन दैट बिहाफ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ यू कुड जस्ट, और मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगी इफ दे कैन शेयर योर डिटेल्स विद मी. आई वुड आल्सो लाइक टू इनवाइट यू टू माय कॉलेज सर, विद माय हम्बल रिक्वेस्ट सर,
I would also like to request you to come to my college and Sure. just enlighten the students there. Sir, I'm sure the positivity that you have, it is going to spread everywhere. I simply, I'm very happy to see your comments. I'll be there, and I deliver lecture in Delhi University, various colleges. आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं. When I was invited to give the first lecture in Miranda House, New Delhi. Okay. तो Miranda House में मेरा lecture तय हुआ. तो जब मैं खड़ा हुआ lecture देने के लिए, तो लड़कियों को लगा कि कहाँ से फंस गए आज. एक साइंटिस्ट को बुला दिया lecture देने के लिए. Bound to be a boring person. और सारी लड़कियां मुझे, मतलब अगर मशीन गन होती उनके पास तो शायद गोली से उड़ा देती. ये कहाँ से आ गया है. When I started and I finished, जब मेरा लेक्चर खत्म हुआ तो they surrounded me for autograph. उसमें एक लड़की ने बताया कि सर, लिसनिंग टू यू, हमको याद आया कि सुबह तो आपका यूजीसी में प्रोग्राम आ रहा था और वी सा यू, और आधे घंटे बाद प्रिंसिपल आई मिरांडा हाउस की. तो बोले आपने क्या बोला, मैं अटेंड नहीं कर पाई. लेकिन आप एक, ये बड़ा अजीब है कि ये हमारे कॉलेज की लड़कियां पहली बार किसी साइंटिस्ट के लिए ये कहने आई है कि एवरी टाइम ही इज इन दिल्ली ही डिलीवर ए लेक्चर, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं. सर, तो मैं पहली बार सुना है. बुक लिख रहा था. सर, मैंने आपको पहली बार सुना है और मैं खुद आपको ये चीज का फीडबैक यही दूंगी कि ये आपका ना एक ऑरा है. वो ऑरा ना अपने आप में आई एम श्योर यू बिलीव इन पॉजिटिव ऑरा. तो वो सर पूरा ना इस टाइम पर मेरे पूरे घर में ऐसा लग रहा है कि फैला हुआ है वो ऑरा ना. इतना अच्छा, इतना बढ़िया लेक्चर. आई कुड एक्चुअली कैन नॉट इमेजिन इतना सर उसमें पॉजिटिविटी और इतनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर, और वो भी बिल्कुल इतने ल्यूसिड वे में आपने एक्सप्लेन करा, हिंदी भाषा के माध्यम से, इंग्लिश भाषा के माध्यम से. और सर आपने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जाम्पल्स लिए हैं. आपने स्टार्टिंग फ्रॉम अब्राहम लिंकन और सब कुछ कवर करते हुए ना आप गेको तक के एग्जाम्पल पर गए हो, जो कि एक कार्टून नेटवर्क पर भी एक सीरियल भी आता है सर गेको का. तो सर मैं आई एम सो हैप्पी, आई फील लकी टुडे टू हैव लिसन्ड टू यू टुडे. थैंक यू सो वेरी मच. उसके बाद मानसी मैम, आई यूज्ड टू गो टू मिरांडा हाउस मेनी टाइम. मैं जब हैदराबाद जाता था तो एयरपोर्ट गाड़ी उनके लेने आ जाती थी. आई यूज्ड टू गो देयर, डिलीवर ए लेक्चर, टेक लंच विद द स्टाफ, और वो फिर हमें दोपहर में छोड़ देते थे एयरपोर्ट. एंड आई यूज्ड टू गो टू हैदराबाद. सो आई थिंक दिस एक्सपीरियंस आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ, यू नो, कि कैसे छोटी छोटी लड़कियां जो थी वहां पे, दे सराउंडेड मी फॉर ऑटोग्राफ. और एक बहुत बढ़िया लगता है, वेरी हार्ड. इनिशियली यू फेल मेनी टाइम्स, यू रिजेक्ट मेनी टाइम्स, लेकिन एक दिन आता है ना व्हेन यू बिकम अ विनर. तो जब फिर क्या होता है ना, यू स्टार्ट बिकमिंग पार्ट. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I hope you will not mind coming to Rajdhani College as well. Sure, definitely. Thank you, sir. I would like to request organizers कि sir आप मेरी details आप sir के साथ share कर लीजिएगा, या उनकी details share कर लीजिएगा. मैं एक formal letter के साथ आपको sir invite करना चाहूँगी. Definitely, ma'am. I'll do that. Thank you so much. Thank you so very much. Sir, now I have no any such comment on chat box कि वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हो. They all were very happy during the session and satisfied also. Good.